हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ फिजियोलॉजी जो हम गाइटन से कर रहे हैं और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 विच इज़ बेसिकली अबाउट द वेक्टोरियल एनालिसिस। वेक्टोरियल एनालिसिस करते करते व्हाट वी आर आल्सो गोइंग टू लर्न टुडे इज़ हाउ टू इंटरप्रेट सम पार्ट्स ऑफ द ECG which is particularly about axis deviation and that's a very important chapter because यहाँ इस chapter से you are going to start learning about ECG interpretation of how the vector analysis and the axis deviation and the coronary blood flow abnormalities are actually approached on an ECG. So going to be a very conceptual and a very important chapter because throughout your life once you learn this chapter you will be fine to interpret ECG of any patient or a normal person. So from the discussion in chapter number 10, now here is an important point. देखें हम चैप्टर 10 और चैप्टर 11 की वीडियोस आपने लाजमी देखनी है इस वीडियो को देखने से पहले बिकॉज वहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं वो यहाँ बार बार यूज़ होंगे एंड फॉर द सेक ऑफ टाइम मैं वो कॉन्सेप्ट्स ऑब्वियसली रिपीट नहीं करूँगा। यानी जब मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ द बेस ऑफ द हार्ट, दिस इज़ द एपेक्स ऑफ द हार्ट, नेगेटिव साइन मीन डीपोलराइजेशन, पॉजिटिव साइन मीन्स आइदर द रेस्टिंग स्टेट और रीपोलराइजेशन, सो ये वर्ड्स मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी spent quite a lot of time understanding these terms in chapter 10 and chapter number 11. So please watch those videos and then come to chapter number 12. Okay? Now from discussions in chapter 10 of the impulse transmission to the heart, it is obvious that any change in the pattern of this transmission can cause abnormal electrical potential. देखिए हमने ये बात सीखी पिछले चैप्टर्स में कि जो भी ECG पर आप waves देखते हैं P and then QRS complex and then a T wave, so everything here is basically because of the voltage generation, because of the electrical activity of the heart, because heart में depolarization, negative charges and positive charges ये movement होती है तो वो record होता है in the ECG. तो अगर कोई abnormality होगी in the transmission of the depolarization wave तो that can be depicted and picked up on the waves of the ECG. So ECG is therefore a very sophisticated non-invasive technique which can be utilized to detect if something is going wrong within the heart. So heart के टिश्यू में अगर कुछ गड़बड़ चल रही है so that can be detected easily on the ECG. For this reason, most abnormalities of the heart muscle can be diagnosed by analyzing the contours of the waves in the ECG leads. अब दोबारा ये जब मैं leads की बात कर रहा हूँ तो चैप्टर नंबर 11 में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि कौन कौन सी ECG leads होती हैं. The bipolar limb leads, the unipolar limb leads, the augmented limb lead. So ये सारी leads, chest leads हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं आपने करना है कि मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे मैं यहाँ दोबारा एक्सप्लेन करने लगा हूँ. वी हैव ऑलरेडी डन दैट. मैंने स्टार्ट में रेकमेंड कर दिया कि चैप्टर 10 और 11 पहले देखें उसके बाद चैप्टर 12 पे आइएगा. ओके, नाउ द फर्स्ट हेडिंग वेक्टोरियल एनालिसिस ऑफ ECG. Vector can represent the electric potential. ये vector का मतलब क्या है अभी समझते हैं. To understand how the cardiac abnormalities affect the contours of ECG, one must first become familiar with the concept of the vectors and vectorial analysis as applied to the electric potentials around the heart. In chapter 11, यानी previous जो chapter था, we pointed out that the heart current flows in a particular direction. और वो direction क्या थी? If you remember, from the base, so that is the base of the heart, and this is the apex of the heart. So the vector यानी ओवरऑल करंट की जो मूवमेंट है या डीपोलराइजेशन की जो मूवमेंट है दैट इज इन दिस डायरेक्शन. ऑल्दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डीपोलराइजेशन में पहले सेप्टा होगा फिर इधर उधर कुशंस चीज़ें आगे पीछे, बट ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन थी फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स. ठीक है, तो ये बात ऑलरेडी हम समझ चुके हैं. वी पॉइंटेड आउट द हार्ट करंट फ्लोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन इज फ्रॉम द बेस to the apex. Okay, also by convention the length of the arrow is drawn proportional to the voltage of the potential. So ये दो बातें याद रखनी है कि a vector is the arrow that points in the direction of the electrical potential generated by the current flow with the arrowhead in the positive direction. So if you look at this diagram, ये arrowhead इस तरफ है यानी ये वाला part जो है this will be the positive part still repolarized यानी still at rest, और ये negative part है so ये depolarized हो चुका है और उतना बड़ा हम एरो बनाएंगे जितना ज़्यादा हम वोल्टेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो द लेंथ इज एक्चुअली इक्वलेंट टू द वोल्टेज एंड द एरो की जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द करंट फ्लो. ओके, नाउ रिजल्टेंट वेक्टर इन द हार्ट एट एनी गिवन इंस्टेंट, द शेडेड एरिया and the minus sign
in figure 12.1 show the depolarization of the ventricular septum and parts of the apical endocardial walls of the two ventricle. At the instant of the heart excitation, electric current flows between the depolarized areas inside the heart and non-depolarized areas outside the heart. यानी if you look at this diagram, figure 12.1, इस diagram में कुछ parts पे आपको negative sign दिख रहा है, यानी ये वाले parts, और कुछ side पे आपको positive part दिख रहा है. So positive parts mean this position is still at rest and negative basically means depolarization. So you are looking at the direction कि ये जो septal ventricle interventricular wall है ये depolarized है, लेकिन outer side of the ventricle जो है ये still at rest है, अभी ये depolarized नहीं हुआ. और इस वक्त आप यहाँ देख रहे हैं कि द करंट डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में सर्कुलर है विद इन द हार्ट, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन. सो देयर आर मल्टीपल डायरेक्शंस गोइंग ऑन फॉर द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो, इसीलिए मल्टीपल वेक्टर्स हैं. लेकिन इन सारे वेक्टर्स को अगर ऐड किया जाए, सो दिस इज द मेन बिग वेक्टर जो है फ्रॉम द बेस टू द apex, okay, and that is represented here with the long black arrow, okay. Right, the direction of the vector is denoted in terms of degrees. अब देखिए ये छोटी छोटी pieces of information हम जमा करते जाएंगे and then by the end of this chapter you should be able to actually interpret ECG कि axis deviation किस तरफ है. So ये हर heading बड़ी important है, pay attention to this. When a vector is exactly horizontal and directed towards the person's left side, the vector is said to extend in the degree which is 0 degrees basically. So if we look at the diagram, so for example ये 1-1 जो लिखा हुआ है, this is basically limb lead 1. और आपको पता है कि limb leads किस तरह से arrange होती हैं. The limb leads are arranged, the lead number 1 is between the right arm and the left arm of the person. अब right arm और left arm जो हैं they are right, इनका जो axis है वो बिल्कुल horizontal axis है. So because the axis is exactly horizontal axis, imagine the right arm of the person here and left arm of the person here, and the leads are obviously attached to the right arm and the left arm, और इनका जो point of entry to the torso है, बॉडी पर जहाँ ये attach हो रहे हैं, that's exactly the horizontal direction. Right और left के बीच में there is nothing but a horizontal line. So if the line is exactly horizontal, then the degree of vector is considered to be 0 degrees. मैं अभी आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ. So if you look at this diagram, so this is obviously right arm, this is obviously left arm, and the right arm कनेक्ट हो रहा है बॉडी पे इस पॉइंट पे, लेफ्ट आर्म कनेक्ट हो रहा है बॉडी पे इस पॉइंट पे. सो अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें इन दोनों पॉइंट्स के बीच, क्यों? बिकॉज लिम्ब लीड 1 में एक कनेक्शन होता है राइट आर्म में, एक कनेक्शन होता है लेफ्ट आर्म में. सो लिम्ब लीड 1 का जो एक्सिस है दैट विल बी 0 डिग्रीज. Is that clear to you now? So ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना जरूरी है, वरना बात आगे समझ में आएगी नहीं. Okay, so that is 0 degrees. अच्छा, from this 0 reference point, scale of the vector rotates in a clockwise fashion. clockwise direction में movement होती है, यानी what does that basically mean कि इस direction में अब axis देखें कैसे move करेगा. बात ये है कि आपको limb lead 1, फिर limb lead 2 और फिर limb lead 3, इन तीनों लीड्स के पहले तो कनेक्शन याद होने चाहिए, कौन सी लीड किधर कनेक्ट होती है, और उस हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो भी वेक्टर हमें दिखेगा डीपोलराइजेशन का, उसका एंगल क्या होगा. दैट्स द मेन थिंग. सो लिम्ब लीड 1 तो आपको समझ में आ गया कि जो लिम्ब लीड 1 है, दिस इज लिम्ब लीड 1, इसमें एंगल क्या होना चाहिए, नॉर्मली 0 डिग्रीज वेक्टर का. सो दैट इज वेरी क्लियर. अब बात करते हैं आगे. From this 0 reference point, the scale of the vector rotates clockwise. When the vector extends from the above and straight downwards, it has a direction of 90 degrees. ये भी दिखाता हूँ मैं आपको. In a normal heart, the average direction of the vector during the spread of depolarization wave through ventricle is about 59 डिग्रीज. हम बार बार ये बात करते हुए आ रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे हार्ट ड्रॉ करूँ, से फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ हार्ट लाइक दिस हेयर, सो टेल मी वेयर इज द बेस ऑफ द हार्ट. दिस इज द बेस ऑफ द हार्ट, है ना, एंड वेयर इज द एपेक्स ऑफ द हार्ट. दिस इज द एपेक्स ऑफ द हार्ट. और नॉर्मल में कई दफ़ा बता चुका हूँ आपको ये कि डीपोलराइजेशन जो ओवरऑल वेक्टर है वो फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स इस डायरेक्शन में मूव करता है, और ये एंगल होता है, द नॉर्मल एंगल इज 59 डिग्रीज, 59 to 60 degrees. So the normal person has the depolarization vector of ventricles in this particular direction.
ओके और ये नॉर्मल बंदे की हम बात कर रहे हैं और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की बात हो रही है। और ईसीजी में आपको पता है द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन इज इक्वल टू द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। सो जब कभी लव्स क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यूज होगा दैट बेसिकली मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डीपोलराइजेशन थ्रू द वेंट्रिकल्स। अगेन ये डिस्कशन उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपने मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी हुई हैं, ठीक है। नाउ एक्सिस फॉर ईच ऑफ द स्टैंडर्ड बाइपोलर लिम्ब लीड, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है क्योंकि यहाँ आपको हर लीड में, लीड 1 में, लीड 2 में और लीड 3 में नॉर्मल एक्सेस क्या होता है वो समझाऊंगा। सो लीड 1 में क्या एक्सेस होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल का, 0 डिग्री, ये बात हम कर चुके हैं। सो एक्सेस ऑफ लीड 1 इज 0 डिग्रीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीड नंबर 2। इन रिकॉर्डिंग लीड नंबर 2 इलेक्ट्रोड्स कहाँ कहाँ लगते हैं आप मुझे बताइए। द इलेक्ट्रोड्स आर अटैच्ड ऑन द राइट आर्म एंड द लेफ्ट लेग। So this is where the electrodes are attached. अब अगर मैं इस डायग्राम पे आपसे पूछूं where is the right arm, this obviously is the right arm, and where would be the left leg? Left leg इस बंदे का यहाँ होगा, so that is going to be the left leg, है ना। left leg इधर है, right arm इधर है। तो एक इलेक्ट्रोड हम यहाँ लगाते हैं राइट आर्म पर। राइट आर्म बॉडी में कहाँ अटैच हो रहा है, इट्स गोइंग टू बी अटैच इन द बॉडी एट दिस पॉइंट पर्टिकुलरली, है ना। यहाँ पे ये देखें टॉर्सो के साथ अटैच हो रहा है। और लेफ्ट लेग कहाँ अटैच हो रहा है, जो लेफ्ट लेग है वो इस पॉइंट पर बॉडी के साथ कहीं अटैच हो रहा है। सो दिस इज देन द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अटैचमेंट्स फॉर लिम्ब लीड नंबर 2। अब हमको ये देखना है कि लिम्ब लीड नंबर 2 में जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगी तो वो एक्सिस हमें क्या मिलेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगेन this is the direction which is close to the base of the heart and this is the direction which is close to the apex of the heart and इस लीड में जो इस डायरेक्शन में है उसमें एंगल हमें मिलता है यूजुअली 60 डिग्रीज which means close to the normal depolarization vector. So it all depends upon the directions really. So if you know the directions you can actually tell okay what we are talking about. So इस diagram को भी it looks like a complicated diagram लेकिन अगर इसको थोड़ा सा time दें, tell me where is limb lead number 1. This is limb lead number 1. Limb lead number 1 कहाँ कहाँ होती है, between the right arm and the left arm. Now because right arm और left arm के बीच में इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन, देयरफॉर द डिग्री इज 0 डिग्री। अच्छा लिम्ब लीड नंबर 2 कहाँ है, दिस इज लिम्ब लीड नंबर 2। यहाँ पे लेग अटैच होगा, लेफ्ट लेग, और इस पे एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोड कहाँ लगता है, दूसरा इलेक्ट्रोड लगता है राइट आर्म में लिम्ब लीड 2 के लिए। सो दिस इज वन पॉइंट एंड दिस इज द अदर पॉइंट, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द डीपोलराइजेशन कॉम्प्लेक्स फॉर लिम्ब लीड 2। सो लिम्ब लीड 2 में कितने डिग्री पे वेक्टर होगा, 60 डिग्री पे। किस चीज़ का वेक्टर है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का वेक्टर है, या दूसरे अल्फाज में वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन का वेक्टर है। सो द डायरेक्शन of QRS vector, अब ये जुमला सुने, the direction of QRS vector in lead 1 is 0 degree, the direction of QRS vector in lead 2 is 60 degree। अब lead 3 की मुझे आप डायरेक्शन बताएं अटैचमेंट की, ये कहाँ कहाँ अटैच होता है। lead 3 is attached, एक इसका इलेक्ट्रोड अटैच होता है towards right leg और दूसरा इसका इलेक्ट्रोड अटैच होता है लेफ्ट आर्म पर। सो नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्म एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ लिम्ब लीड 3 इज टुवर्ड्स द राइट लेग। सो इसकी जो डायरेक्शन है दैट ऑफ डीपोलराइजेशन ऑब्वियसली इज इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज 120 डिग्रीज फ्रॉम लीड 1 एक्सेस। सो दैट्स हाउ यू डिटरमाइन लिम्ब लीड 3। सो even if you don't remember all this complex खिचड़ी कि AVL में क्या होगा, AVR में, although अगर आप ये सेम कॉन्सेप्ट्स इस पे लगाएंगे तो you will crack it कि AVR for example कहाँ अटैच होता है, तो you can actually understand the direction. But I want you to remember is कि आपको lead number 1, lead number 2 and lead number 3 इन तीनों लीड्स में वेंट्रिकल की जो डीपोलराइजेशन है उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए वेक्टर की। लीड 1 में वो डायरेक्शन होती है 0 डिग्री, लीड 2 में वो डायरेक्शन है 60 डिग्री एंड लीड 3 में वो डायरेक्शन है 120 डिग्री। सो दिस इज अ मस्ट रिमेंबर थिंग, ओके। लीड 1 0 डिग्री, lead 2 60 degree and lead 3 120 degrees, okay. So that's all very very important discussion. Now the reader must learn these axes and their polarities, particularly for the bipolar limb leads, limb 1, lead 2 and lead 3, to understand the remainder of this chapter. See, this is extremely important because यहाँ बात ये हो रही है कि अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आगे जो हम डिस्कशन करने लगे हैं वो दिस विल एक्चुअली नॉट मेक सेंस टू यू, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ओके।
Right. The next heading is vectorial analysis of potentials recorded in different leads. Figure 12.4 shows a partially depolarized heart with vector A representing the instantaneous mean direction of the current flow in the ventricle. Let us have a look at figure 12.4. So where is figure 12.4? Let me find figure 12.4. That is figure 12 number 4. Okay. इसमें एक हार्ट दिख रहा है. ऑब्वियसली हम वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं एंड दिस इज लुकिंग वेरी मच नॉर्मल टू मी. इसकी तरह दिख रहा है ये, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ द हार्ट एंड दिस इज द एपेक्स ऑफ द हार्ट. और अगर मैं मीन वेक्टर की बात करूं तो वो 59 डिग्रीज पर है, इस तरह से टिल्ट हुआ है. सो आई कैन सी दिस इज अ नॉर्मल हार्ट, है ना. So there is a vector A, this is vector A which is representing the instantaneous mean direction of the current flow in the ventricle. In this case it is about 55 degrees. Obviously यहाँ पे मैंने डिग्री अभी D रख के प्रोटेक्टर रख के कैलकुलेट नहीं की है, but it's somewhere between 55 to 60 degrees, so it looks normal to me. And the voltage of the potential represented by the length of the vector is about 2 millivolts. Again, we have not quantified the voltage, but जितनी लंबी length होती है उतना ज़्यादा voltage होता है. In the diagram below the heart, vector A is shown again and a line is drawn to represent the axis of lead 1 in the 0 degree direction. अब ये सुने, इस डायग्राम को तो हमने कई दफ़ा डिस्कस भी किया है और समझ भी लिया है कि व्हाट बेसिकली इट इज़ टेलिंग यू इज़ अ डीपोलराइजेशन वेव थ्रू द वेंट्रिकल and the mean vector of the direction of the current flow. तो वो इस डायरेक्शन में है, 55 डिग्रीज है, ये बता दिया. Now what we are talking about, listen carefully. ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इस तरफ राइट आर्म पे अटैच्ड है और ये इस तरफ लेफ्ट आर्म पे अटैच्ड है, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर कर रहे हैं. और ये जो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म पे अटैच्ड है वो कौन सी लिम्ब लीड होती है? लिम्ब लीड नंबर 1. सो वी हैव ड्रॉन लिम्ब लीड नंबर 1 और यहाँ हमने इसके साथ 55 डिग्रीज या 56 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करके ये वेक्टर बना दिया. तो हार्ट अभी हमने हटा दिया है और ये इस तरह से वेक्टर ड्रॉ कर लिया है. द एंगल इज बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज द सपोजिटरी लाइन फॉर लिम्ब लीड नंबर 1. यहाँ तक बात समझ में आ गई तो आगे सुनिए. टू डिटरमाइन how much voltage of the vector in vector A is actually recorded, a line perpendicular to the axis of lead 1 is drawn from the tip of the vector A to the lead 1 axis and the so called projected vector is drawn along the lead 1 axis. So basically अब ये कर रहे हैं कि ये जो वेक्टर A है उसकी टिप से लेके एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है 90 डिग्रीज पे. जहाँ ये लाइन लिम्ब लीड 1 के एक्सिस को कट कर रही है ये हमने एक और वेक्टर ड्रॉ कर लिया है इसकी यहाँ टेल से लेके इस लाइन के इंटरसेक्शन तक. इसको हम नाम देते हैं प्रोजेक्टेड वेक्टर. सो दिस इज द प्रोजेक्टेड वेक्टर. प्रोजेक्टेड ऑफ व्हाट? प्रोजेक्टेड वेक्टर ऑफ वेक्टर A. सो वेक्टर A वाज द मीन वेक्टर, इसका प्रोजेक्टेड वेक्टर है जिसको नाम दिया है वेक्टर B. द arrow of the projected vector point towards the positive end of the lead 1. अब ये सुने भाई, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. मैं इस चैप्टर के एंड पे आपसे इंटरप्रिटेशन करवाऊंगा कि एक्सिस डेविएशन क्या है, तो वहाँ ये सारी बातें दोबारा रिपीट होंगी. पहली चीज़ तो अभी तक मैंने आपको ये सिखाई है कि हाउ टू ड्रॉ अ प्रोजेक्टेड वेक्टर. तो जो भी मेरे पास ओरिजिनल वेक्टर है उससे मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है और एक्सिस 1 पे देखा है वो कहाँ क्रॉस कर रही है और ये बन गया हमारे पास प्रोजेक्टेड वेक्टर. ठीक है ना. अब इस प्रोजेक्टेड वेक्टर का जो हेड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है. इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वेव है, दिस वेव इज बेसिकली या वोल्टेज इज रिकॉर्डेड बेसिकली इज पॉजिटिव वोल्टेज. The instantaneous recorded voltage will be equal to the length of B divided by the length of 2. ये एक फॉर्मूला है जिससे आप एक्चुअली वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वोल्टेज राइट नाउ. मुझे आपको क्वालिटेटिव स्टफ सिखाना है कि यू शुड बी एबल टू टेल कि ये जो वोल्टेज है ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज नहीं है, इट्स अबाउट 1 मिली वोल्ट. और इसी कैलकुलेशन का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है कि किससे किसको डिवाइड करें तो आपको ये वोल्टेज मिल जाएगा. नॉट द पॉइंट है, बट यू नो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट. नंबर 1, draw the projected vector, and number 2, look at the direction. If the arrow is obviously going to be towards the intersected line. If the arrow is directed towards the positive part of the lead, this means the voltage is positive. तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और ECG पर पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब ये होगा कि वो एक्सिस से जो भी ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे बनेगा. अगर अभी हम देखेंगे सिनेरियोज ऐसे जिसमें नेगेटिव मामला होगा, यानी जो हेड ऑफ द एरो है वो पॉजिटिव लीड की डायरेक्शन की तरफ नहीं होगा बल्कि नेगेटिव की तरफ होगा. सो दैट विल बी रिकॉर्डेड बिलो द एक्सिस.
ECG पर वो ऐसा नजर आएगा. सो ECG पे जो भी वेव आपको ऊपर नजर आ रही है जीरो लाइन से, दैट्स अ पॉजिटिव रिकॉर्डिंग, और जो भी नीचे नजर आ रही है दैट्स अ नेगेटिव रिकॉर्डिंग. और यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता चलेगा? आई जस्ट टोल्ड यू. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, नाउ फिगर 12.5 shows another example of the vectorial analysis. In this example, vector A represents the electrical potential and its axis at a given instant during ventricular depolarization in a heart, in which the left side of the heart depolarizes more than the right side of the heart. ये अभी मैं आपको थोड़ी सी देर में समझाता हूँ. Just look at the diagram here. अब ये डायग्राम जो है इसमें दे हैव टोल्ड यू कि एक्सिस का एंगल ये है. अब ये एंगल ऑब्वियसली नॉर्मल एंगल ये होता है. यू रिमेंबर द नॉर्मल एंगल इज दिस वन. यानी नॉर्मल एंगल में अगर आप यहाँ पे लीड वन का हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करें सो इट इज समवॉट अबाउट 59. लेकिन अब ज़रा सिनेरियो देखें. अब इन्होंने जो आपको वोल्टेज और एंगल डायरेक्शन दी है वो इट्स नॉट द नॉर्मल डायरेक्शन, इट्स समथिंग स्लाइटली डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल डायरेक्शन. तो इस वेक्टर को अगर मैं लीड वन के एक्सिस के साथ ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है वो एंगल डिफरेंट है एज कंपेयर टू द नॉर्मल 59 और 60 डिग्री एंगल. वो एंगल अब ये नहीं है. अब उससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? इम्पैक्ट ये पड़ रहा है, ज़रा गौर से देखिए. अब इफ आई टोल्ड यू द रूल, प्रोजेक्टेड वेक्टर बनाना है मुझे इस वेक्टर ए का, और प्रोजेक्टेड वेक्टर बनाने का तरीका ये है कि टिप ऑफ द वेक्टर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो लीड वन के एक्सिस को क्रॉस कर रही है. इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है इस तरह मैंने एक वेक्टर बना दिया. दिस वेक्टर बी इज नाउ नोन एज द प्रोजेक्टेड वेक्टर. मुझे बताओ ये प्रोजेक्टेड वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द लीड वन है या नेगेटिव एंड ऑफ द लीड वन है? द हेड ऑफ प्रोजेक्टेड वेक्टर बी इज टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन, and since it is towards the negative direction, this voltage will be recorded in the negative direction. In this case the instantaneous vector has a direction of 100 degrees and the voltage is 2 millivolts. I'm not discussing this at the moment. To determine the potential actually recorded in lead 1, we draw a perpendicular line because हमें projected vector B बनाना है, and we just saw कि कैसे बनेगा. Vector B is very short and this time it is in the negative direction, indicating at this particular instant the recording in lead 1 will be negative. यानी ECG पर it will be looking below the zero line. ठीक है? And the voltage also is very small because the length of the vector actually indicates the voltage. अब यहाँ देखें लेंथ कितनी छोटी सी बन रही है. because छोटी सी लेंथ बन रही है प्रोजेक्टेड वेक्टर की, इसका मतलब इसका वोल्टेज बहुत ही कम है. okay, this figure demonstrate that when the vector in the heart is in a direction almost perpendicular to the axis of the lead, the voltage recorded in the ECG is a very low. ये बात इस तरह से है कि again if you look at this diagram, मैं अगर लीड वन एक्सिस का बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करता तो वैसे होता. दिस इज क्लोज टू परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री. ये वाला एंगल जो है कितना है? दिस इज 100 डिग्री. सो दिस इज क्लोज टू परपेंडिकुलर. ऑब्वियसली इट्स क्लोज टू परपेंडिकुलर, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी जिससे मैं प्रोजेक्टेड वेक्टर बनाऊंगा वो लाइन बहुत छोटी होगी. सो सिंपल रूल ये है कि इफ द वेक्टर, द मीन वेक्टर इज नियर टू द परपेंडिकुलर, द वोल्टेज विल बी very लो. कन्वर्सली equal to that, no ये line नहीं थी. Conversely, when the heart vector has almost exactly the same axis as the lead axis, essentially the entire voltage will be recorded. So we'll discuss this in a bit. Okay, now the vectorial analysis of potential in the three standard bipolar limblets, very important diagram that we have to discuss. And before we start discussing this diagram, let me take you to figure 12.6, which talks about, where is figure 6 by the way? This 12.6, yeah, where vector A depicts the instantaneous electrical potential of the partially depolarized heart. So where is this? Is vector A. Vector A means mean QRS, which means mean depolarization wave, and this to me looks in a very good direction because this is the looking like a normal direction. अब यहाँ से अगर मुझे ये lead 1 ड्रॉ की हुई है, lead 1 is right आर्म एंड लेफ्ट आर्म, जो कि हमारा स्टैंडर्ड बेसलाइन एक्सिस है. और ये जो बेसलाइन एक्सिस है उस पर मुझे अगर वेक्टर बनाना है सो मुझे वेक्टर ए से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है लीड 1 के एक्सिस तक. सो ये बन गया मेरा प्रोजेक्टेड वेक्टर बी विच इज़ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. लीड 1 में इट विल बी रिकॉर्डेड पॉजिटिव. तो अगर ये तो हो गई लीड 1 की कहानी सारी क्लियर कि प्रोजेक्टेड वेक्टर मुझे पता लग गया पॉजिटिव डायरेक्शन का है. अब लीड 2 किधर है? लीड 2 ये रही, इट्स बिटवीन द राइट आर्म एंड द लेफ्ट लेग. लेफ्ट लेग इधर था ना. सो मुझे लीड
टू में प्रोजेक्टेड वेक्टर बनाना है, तो अगेन मुझे वेक्टर ए की तरफ जाना होगा. अब मैं परपेंडिकुलर लीड वन की तरफ नहीं बनाऊंगा, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बनाऊंगा टूवर्ड्स वेक्टर ए का परपेंडिकुलर बनाऊंगा टूवर्ड्स लीड टू, बिकॉज मुझे लीड टू में एक्सेस देखना है. और जब मैंने ये परपेंडिकुलर बनाया तो ये मेरा बन गया एक और प्रोजेक्टेड वेक्टर. दिस इज द प्रोजेक्टेड वेक्टर इन लीड टू. इसका जो हेड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है, तो ये भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा लीड टू में. सो लीड वन में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, लीड टू में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन. अब देखते हैं लीड थ्री में. लीड थ्री में मुझे प्रोजेक्टेड वेक्टर बनाने के लिए ऑब्वियसली जो वेक्टर ए है उससे मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा. ये वेक्टर ए है, यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा कहाँ, लीड थ्री पर. और जब लीड थ्री पर ड्रॉ करता हूं तो ये मेरा बन गया प्रोजेक्टेड वेक्टर लीड थ्री पर. और लीड थ्री का जो प्रोजेक्टेड वेक्टर है उसका जो हेड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है. इसका मतलब ये हुआ जो मेरी लीड वन होगी उसमें भी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव, लीड टू में भी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव, लीड थ्री में भी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव. सो दैट्स हाउ यू सी कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस किधर किधर हैं. ठीक है, ये सारा डिस्कशन यहाँ पे लिखा हुआ है. दे आर ऑल इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. ओके, अब मैं बात करता हूं कि हाउ डू वी एक्चुअली एनालाइज द वेक्टर्स इन द नॉर्मल ईसीजी. नॉर्मल ईसीजी और वेक्टर एनालिसिस इस डायग्राम में हमें देखनी है कि कैसे कोरिलेट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग कि हाउ टू डू वेक्टर एनालिसिस बाय लुकिंग एट अ नॉर्मल ईसीजी. वेक्टर्स दैट अकर एट सक्सेसिव इंटरवल्स ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. अच्छा, अब ये टर्मिनोलॉजी आपको बताया कि व्हेनेवर वी से द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बेसिकली मीन ventricular depolarization. ठीक है, so when the cardiac impulses enter the ventricles through the atrioventricular bundle, the first part of the ventricle to become depolarized is the left endocardial surface of the septum. Then depolarization is spread to involve both the endocardial surfaces of the septum. यानी जो depolarization की वेव है, हम बार बार ये बात तो जरूर कर रहे हैं कि if this is the heart, this is the base, this is the apex, the overall mean direction of the current flow is this, which is roughly 60 degrees from the lead one axis. लेकिन ये बात भी मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में कई दफा समझाई है कि the direction is in different stages. ये जो है ये तो ओवरऑल मीन डायरेक्शन है इस वेक्टर की डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स की. लेकिन अगर हम स्टेप वाइज इसको डिवाइड कर दें और 5-6 डिफरेंट स्टेजेस में इसको पढ़ें, सो द स्टेज वन इज व्हेन द लेफ्ट एंडोकार्डियल कुशन इज बेसिकली द सेप्टम का लेफ्ट वाला जो पार्ट है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, दैट इज फर्स्ट डीपोलराइज्ड. फिर सेकंड फेज में दोनों पार्ट्स आर डीपोलराइज्ड. दैट्स हाउ द वेव प्रोग्रेसेस. फिर ventricular muscles again in this direction, and then it also travels across the interventricular septum. So these are different stages. और हर स्टेज पर आपको वेक्टर किस तरह दिखेगा, how would you actually look at the vector and tell कि तीनों लीड्स में वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी. देखो, एट द एंड ऑफ द डे आप ईसीजी देख रहे होंगे, आप ये वाली डायग्राम्स आपको कोई बना के नहीं दे रहा होगा ईसीजी पेपर पर, या ये वाली डायग्राम्स आपको ये दिखेगा. दिस इज व्हाट यू विल लुक एट. आपको अगर वेंट्रिकुलर स्टफ देखना है देन यू शुड बी एबल टू रीच द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस. इसके लिए आपको रिवर्स इंजीनियर करना होगा अपने माइंड में कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो आपके सामने बना हुआ है, सो दैट फॉर एग्जाम्पल इज अ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किन किन स्टेजेस से मिलकर बनता है. सो स्टेज नंबर वन में सी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं. द फर्स्ट thing to depolarize is the left endocardial surface. ठीक है, और अब ये इन्होंने यहाँ पे बड़ी डिटेल में फिगर A to फिगर E डिफरेंट स्टेजेस बताए हैं that how the QRS complex is generated और उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी तीनों लीड्स में. सो लेट्स स्पेंड सम टाइम अंडरस्टैंडिंग दिस डायग्राम, और बाकी डायग्राम्स आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी. सो व्हाट वी आर लुकिंग एट इज दिस इज द हार्ट, और ये हार्ट में डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स में एंटर हो रही है, और वेंट्रिकल में एंटर हो रही है, एंड दिस इज इन द डायरेक्शन विच इज डाउनवर्ड डायरेक्शन. वी आर लुकिंग एट लीड नंबर 1, लीड नंबर 2 एंड लीड नंबर 3. नाउ यू टेल मी, अब आपको ये चीजें पता है कि इफ दिस इज द वेक्टर, इस वेक्टर के मुझे प्रोजेक्टेड वेक्टर बनाने हैं एक्सिस 1, एक्सिस 2, एक्सिस 3 के हिसाब से, यानी लीड 1, लीड 2 और लीड 3 के हिसाब से. सो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ऑल 3 एक्सिस. पहला एक्सिस में ये बनाऊंगा लीड 1 का एक्सिस, दूसरा एक्सिस ये बनाऊंगा लीड 2 का एक्सिस, और तीसरा एक्सिस ये बनेगा. इन एक्सिस की डायरेक्शन ऐसी क्यों है हम ऑलरेडी कई दफा डिस्कस कर चुके हैं. हॉरिजॉन्टल ये इसलिए होता है लीड 1 का एक्सिस बिकॉज ये राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच में है, सो इट्स अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस. लीड 2 का जो एक्सिस है वो इस डायरेक्शन में इसलिए है बिकॉज हियर वी हैव द राइट आर्म अटैचिंग टू द बॉडी एंड दिस इज वेयर लेफ्ट लेग अटैचेस टू द बॉडी. और लीड 2 इसी तरह तो लगता है राइट आर्म और लेफ्ट लेग पे. लीड 3 की ये डायरेक्शन क्यों है, यू नो
राइट लेग एंड लेफ्ट आर्म. सो दिस इज समथिंग दैट यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद. तो ये आपको मुझे अलग से बताने की अब जरूरत नहीं, यू नो दीज थिंग्स. अब ये आपके सामने मौजूद है सारा डिटेल डिस्कशन. मुझे ये पूछना है आपसे कि ये जो वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसको अगर मैं लीड 1 के एक्सिस के साथ ड्रॉ करूं, सो ये वाला जो वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर व्हिच इज द मीन वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम. अब इस वेक्टर के मुझे प्रोजेक्टेड वेक्टर बनाने हैं लीड 1 पर, लीड 2 पर और लीड 3 पर. सो लेट मी ड्रॉ दिस विद अ डिफरेंट कलर. मैं ब्लू कलर से जो मीन वेक्टर है वो ड्रॉ कर देता हूं. सो दैट इज द मीन वेक्टर. इस मीन वेक्टर के मुझे प्रोजेक्टेड 3 वेक्टर बनाने हैं और पहला वेक्टर मुझे बनाना है लीड 1 पर. तो उसका तरीका ये होगा कि मैं यहां से परपेंडिकुलर लाइन उठाऊं, लीड 1 तक चला जाऊं, तो ये बन गया मेरा पहला प्रोजेक्टेड वेक्टर जिसका वोल्टेज बहुत ही कम है. लेकिन मुझे ये बताइए कि लीड 1 का जो वेक्टर मैंने बनाया है प्रोजेक्टेड, उसका हेड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है? इट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ईसीजी पर ये मुझे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नजर आएगा. तो देखिए लीड 1 में दिस इज द बेस लाइन और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन. समझ में आती है ये बात? अब मुझे इसी वेक्टर का लीड 2 पर एक प्रोजेक्टेड वेक्टर बनाना है. दिस इज लीड 2 और ये लीड 2 पर मैं जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये वेक्टर बनेगा और इसका वोल्टेज ज्यादा लग रहा है क्योंकि ये काफी लंबा सा वेक्टर है, इतना लंबा है. अगर मैं इनको मिटा दूं ब्लू और ब्लैक दोनों को, तो जरा देखिए ये वाला वेक्टर काफी लंबा वेक्टर है इसके कंपैरिजन में. और इसका हेड कहाँ है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो ये भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा. और चूंकि इसका वोल्टेज ज्यादा है, तो ये देखें इसका वोल्टेज कम था तो ये छोटी लाइन है, इसका वोल्टेज ज्यादा है लीड 2 में तो ये बड़ी लाइन है. अब मुझे लीड 3 में देखना है कि इसका एक्सिस किधर है. सो लीड 3 पर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा और एक ये बन गया मेरा प्रोजेक्टेड वेक्टर लीड 3 का. इसका हेड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है, देयरफॉर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन. और ये भी एक छोटा सा वेक्टर है यानी वोल्टेज इसका भी कम है. सो ये तीनों लीड्स में फर्स्ट स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन में मुझे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा और उस पॉजिटिव डिफ्लेक्शन की वजह से लीड 1 में भी, लीड 2 में भी और लीड 3 में भी जो बेसलाइन है उससे ऊपर जा रहा है मामला. अब सेकंड फेज क्या है? Further parts of the ventricle are depolarized and the vector is still in this direction. अब इस वेक्टर को उठा के मैं यहां ले आता हूं. So now this is the vector here. अगेन मुझे 3 लीड्स पर देखना है कि प्रोजेक्टेड वेक्टर्स कैसे होंगे. प्रोजेक्टेड वेक्टर बनाने का तरीका आपको आता है कि आपने लीड 1 बनाई हुई है, लीड 2 बनाई हुई है, लीड 3 बनाई हुई है. सो लीड 1 तक अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो ये मेरा बन गया प्रोजेक्टेड वेक्टर ऑफ लीड 1. मुझे इसका हेड देखना है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है, सो द डिफ्लेक्शन इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. अब मुझे इसका वोल्टेज देखना है, तो पहले जितना ये था यहां इससे थोड़ा ऊपर चला गया. इससे ऊपर इसलिए चला गया है क्योंकि पहले यहां तक का वोल्टेज प्रीवियस स्टेप से था और अब जो मजीद ही ऊपर लाइन लंबी हुई है तो अब ये डीपोलराइजेशन भी तो एक्सटेंड हुई है. बिल्कुल इसी, लेकिन है दोनों पॉजिटिव. ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट थी, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट है. लीड 1 की बात कर रहा हूं. अब अगर लीड 2 में मुझे देखना है कि व्हाट इज द प्रोजेक्टेड वेक्टर, तो अगेन मैं इस वेक्टर से लीड 2 की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा. ये लंबा सा वेक्टर बन गया, तो ये लंबा सा ऐड हो गया. देखें दिस इज अ लॉन्ग एडिशन नाउ. और ये जो लॉन्ग एडिशन है दिस इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्टेड वेक्टर. लीड 2 में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है ये भी. अगर मुझे लीड 3 में देखनी है डिफ्लेक्शन इस स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन की, तो मुझे इस मीन वेक्टर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी जो लीड 3 पे इंटरसेक्ट करे. ये बन गया लीड 3 का प्रोजेक्टेड वेक्टर. हेड इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन, देयरफॉर द डिफ्लेक्शन इज पॉजिटिव. और ये रिलेटिवली लीड 1 से थोड़ा सा बड़ा वेक्टर है तो ये मजीद ऐड हो गया. सो आप देखें किस तरह डीपोलराइजेशन की जो वेव है वो बड़ी होती जा रही है ईसीजी पर. सो दिस लास्ट थिंग दैट वी आर डिस्कस, दिस इज द ईसीजी लाइन. आपको ईसीजी पे ये नजर आ रहा है, ठीक है. दिस इज व्हाट इज द वेक्टर एनालिसिस. आप वेक्टर एनालिसिस कर रहे हो और ईसीजी पर ये ऐसा दिखेगा. तो अब तक पहली स्टेज में, सेकंड स्टेज में डिफ्लेक्शन ईसीजी पर किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव डायरेक्शन में, तीनों लीड्स पर. नेक्स्ट स्टेज देखिए, नेक्स्ट स्टेज में वेंट्रिकल का फर्दर पार्ट डीपोलराइज हो रहा है और मीन वेक्टर की डायरेक्शन अभी भी यही है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मीन वेक्टर और इट इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन हियर. देयरफॉर एवरीथिंग is still on the ECG is in the positive direction. ठीक है. इस यहां ये अब मामला डिफरेंट हो गया. अब इस स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन में, एंड दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, इस स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन में द मीन वेक्टर ऑफ डीपोलराइजेशन इज नॉट मूविंग डाउनवर्ड हेयर, इस तरफ मूव नहीं कर रहा, इट इज रादर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. अब अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो अब वेक्टर एनालिसिस ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगी. क्या हो रहा है? इरेजर उठाना है मुझे. सो अब ये जो वेक्टर एनालिसिस है इट विल ऑल बी वेरी डिफरेंट. इस वेक्टर को उठा करके मुझे इन एक्सिस पे रखना है. सो दिस इज लीड 1 एक्सिस, लीड 2 एक्सिस, लीड 3 एक्सिस.
इस वेक्टर को मैं एज इट इज यहां जब लेके जाऊंगा और मुझे लीड 1 का प्रोजेक्टेड वेक्टर देखना है तो मैं ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर लाइन लीड 1 में, इसका जो एरो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है, तो लीड 1 में स्टिल डिफ्लेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में, वोल्टेज बहुत छोटा सा है इसलिए बहुत ही छोटा सा मूवमेंट है। लेकिन अगर मैं लीड 2 को देखता हूं तो लीड 2 पर ये जो मेरा प्रोजेक्टेड वेक्टर बनेगा उसका हेड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है हियर। सो लेट मी डू दिस वन मोर टाइम। वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्टेड वेक्टर इन लीड 2। ये मेरा वेक्टर है जो मीन वेक्टर है डीपोलराइजेशन का, ये वाला दिस वेक्टर। इस वेक्टर से जब मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो लीड 2 को क्रॉस कर रही है एक्सिस को, और ये मैंने बना दिया अपना प्रोजेक्टेड वेक्टर लीड 2 पर। प्रोजेक्टेड वेक्टर का जो हेड है इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, देयरफॉर यू नाउ सी द डिफ्लेक्शन इज बिलो द बेस लाइन। ये बेस लाइन है तो डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ इसलिए है क्योंकि वेक्टर नेगेटिव डायरेक्शन में है ना। इसी तरह लीड 3 मेरा मीन वेक्टर किधर है, ये मेरा मीन वेक्टर है, इससे मैं जब लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये इस तरफ मेरा बनेगा प्रोजेक्टेड वेक्टर। प्रोजेक्टेड वेक्टर का हेड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है इसलिए लीड 3 में भी आपको ईसीजी में नेगेटिव लाइन मिलेगी। सो यू गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स, किस तरह नेगेटिव लाइन मिलती है, किस तरह पॉजिटिव लाइन मिलती है। तो अब आप कितने ईसीजी जब हम देखते हैं, सो लेट मी शो यू एन ईसीजी समवेयर। दिस इज एन ईसीजी। ईसीजी में अगर आप एक बेस लाइन ड्रॉ करो तो बेस लाइन में जब ऊपर डिफ्लेक्शन हो रही है तो इसका मतलब अब आपको समझ में आना चाहिए कि ऊपर डिफ्लेक्शन का मतलब ये है, हम लीड 1 देख रहे हैं तो लीड 1 में जो प्रोजेक्टेड वेक्टर बनेगा उसका जो हेड होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहाँ लीड 3 में जो मुझे नेगेटिव दिख रहा है तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि लीड 3 पर जो प्रोजेक्टेड वेक्टर है उसका जो हेड है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है। इस तरह आप जब ईसीजी देखते हैं तो फिर रिवर्स इंजीनियर करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को कि इफ यू आर लुकिंग पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस इन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, व्हाट डज दैट मीन? If you are looking negative reflections in QRS complex, what does that mean? Okay, so all this discussion is of very high value, right? So ये डायग्राम सबकी समझ में आ गई, simple. So QRS complex, ये जो पूरा QRS complex बना है लीड 1 में, लीड 2 में, लीड 3 में, सिर्फ लीड 3 और लीड 2 में there are minor negative components। उसका रीजन क्या है आपको मैंने यहाँ बता दिया, लेकिन लीड 1 में it's all positive। ठीक है, ये सारी डिस्कशन यहाँ पे लिखी हुई है, सो यू कैन रीड थ्रू द डिस्कशन, बट दैट इज व्हाट इट इज। मैंने फिगर 2C 2D ये सब आपको बता दिए हैं, 2C 2D वी हैव डिस्कस्ड देम ऑल बेसिकली। ओके, नाउ दैट इज ऑल डन। अब मुझे बात, सो बेसिकली ईसीजी में पार्ट्स होते क्या क्या है? ईसीजी में देयर इज अ पी वेव, द पी वेव इज फॉर द एट्रियल डीपोलराइजेशन, देन देयर इज अ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है इट इज अबाउट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एंड देन वी हैव अ टी वेव। जो टी वेव है दैट इज फॉर रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो अब आप मुझे ये बताएं कि व्हाट वी हैव डन अप टिल नाउ, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमने किया है ना, ये जितना भी हमने डिस्कशन किया दैट वाज अबाउट फॉर्मिंग द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। सो वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन हो गई। अब मुझे आपसे बात करनी है कि व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का मतलब है कौन सी वेव? टी वेव। ठीक है, अच्छा ये डायग्राम देखें, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूं कि अगर ये हार्ड है और स्टूडेंट समझते हैं कि डीपोलराइजेशन की डायरेक्शन ये है तो शायद रीपोलराइजेशन की डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसा नहीं है। रीपोलराइजेशन की भी यही डायरेक्शन है। देखें डायग्राम, एंड देयर आर मैकेनिक्स इन्वॉल्व इन इट। चैप्टर नंबर 10 और 11 आप मेरा देखें तो आपको ये समझ में आएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की डायरेक्शन भी यही है। तो अगर इस डायरेक्शन को आप ये एक्सिस 1, 2 और 3 पे प्लॉट करें, सो दिस फॉर एग्जांपल इज योर मीन वेक्टर, इस डायरेक्शन वाला, तो इसका प्रोजेक्शन बनाएं, प्रोजेक्टेड वेक्टर लीड 1 पर, प्रोजेक्टेड वेक्टर लीड 2 पर, प्रोजेक्टेड वेक्टर लीड 3 पर, सबके सब पॉजिटिव बनेंगे। इसीलिए ऑल द स्टेजेस ऑफ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन आर positive deflection, positive deflection, positive deflection. So this is all very positive deflection. ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको जरा। After the ventricular muscle has become depolarized, about 0.15 second later repolarization begins. ठीक है, ये बात हमें पता है, and this on ECG is represented as a T wave. Maybe we know that. Now therefore the greatest portion of the ventricular muscle mass repolarized first. ये मुझे नहीं बताना आपको because this is not. As a result the normal T wave in all three, ये सुनो यार, ये important है। As a result the normal T wave in all three leads, lead 1, lead 2 and lead 3, which is also the polarity of the most QRS complex, it is all positive. It is all positive because इसकी direction सबकी ये है, जो projected vector जब बनाते हैं तो सब positive हैं, so they are all positive deflection in all
ऑल थ्री लीड्स। तो जब आप टी वेव देखेंगे किसी भी ईसीजी पर, सो इफ यू लुक एट द टी वेव हियर, सो दैट्स द टी वेव हियर, इट्स अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, दैट्स अ टी वेव हियर, इट्स अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, दैट्स अ टी वेव हियर, ऑल्दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है लेकिन ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। सो लीड 1 में, 2 में, 3 में टी वेव इज अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इन नॉर्मल पर्सन्स। ओके, तो वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन हो गई, वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन हो गई। अब मुझे बात करनी है एट्रिया की डीपोलराइजेशन, जो कि कैसे नजर आती है। It is represented by P wave on the ECG. So we have a P wave, then a QRS complex, then a T wave. तो T wave हमने पढ़ ली, QRS complex पढ़ लिया, and now we need to talk about P wave, which is atrial depolarization. The depolarization of the atrium. Again, इसमें अगर आपको डायरेक्शन बताओ कि वेक्टर क्या है और डीपोलराइजेशन करंट की फ्लो की डायरेक्शन क्या है, तो आप ये बता दोगे कि लीड 1, लीड 2, लीड 3 में कैसा दिखेगा। तो लेट मी डायरेक्टली टेल यू द डायरेक्शन। सो लेट्स गो here. This is atrial depolarization की direction. It's almost the same as we discussed in the ventricular depolarization. Remember that was the ventricle. तो ventricle की डायरेक्शन हमने ये डिस्कस की थी, यही एट्रिया की डायरेक्शन है। अब जब यही एट्रिया की डायरेक्शन है, इस वेक्टर को उठा के मैं लीड 1, 2 और 3 पर जब रखूंगा, दिस इज माई वेक्टर हेयर ना, तो इस वेक्टर से एनालिसिस जरा आप कीजिए ना। एनालिसिस अगर मुझे प्रोजेक्टेड वेक्टर देखना है लीड 1 में, सो आई ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज माई प्रोजेक्टेड वेक्टर, इसका हेड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है, सो लीड 1 में पी वेव विल बी पॉजिटिव, ऐसे ही ना। लीड 2 में इसका देखें जरा, लीड 2 में प्रोजेक्टेड वेक्टर हेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव, इट्स अ पॉजिटिव इन लीड 2 एज वेल। अच्छा, लीड 3 में दिस इज लीड 3, ओके, दैट इज लीड 3, और लीड 3 में वोल्टेज बहुत ही कम है, इसीलिए इसको देखते ही नहीं हम लीड 3 के अंदर। बेसिकली उसी इतना जरा सा वेक्टर बना है तो ये देखा नहीं जाता, बट एनीवेज दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ भी जो प्रोजेक्टेड वेक्टर बनेगा उसका जो हेड होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो पी वेव इज ऑल्सो पॉजिटिव इन ऑल दीज 3 इलेक्ट्रोड्स। ओके, राइट। तो अच्छा, फिर एक चीज रह गई, वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन की बात कर ली, वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन की बात कर ली। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या था, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या था, टी वेव। एट्रिया की डीपोलराइजेशन की बात कर ली यानी पी वेव। एट्रिया की रीपोलराइजेशन की बात ये मैं नहीं करूंगा, उसका रीजन ये क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये एम्बेडेड होता है, तो ईसीजी पर जब ये दिखता ही नहीं है तो इस पर खामखा में मगज खपाने की जरूरत ही नहीं है। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस हेडिंग, द एट्रियल टी वेव्स, बिकॉज दे आर सबमर्ज्ड विद इन द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और नॉर्मल ईसीजी पे ये आपको नजर ही नहीं आता। जब ये आपको नॉर्मल ईसीजी पर नजर ही नहीं आता तो मैं इस पर टाइम वेस्ट क्यों करूं। ओके, सो वेक्टर एनालिसिस पल्ले पड़ती जा रही है बात। डायरेक्शन से आप ये पॉजिटिव नेगेटिव डिफ्लेक्शन से ईसीजी देखकर बता सकते हैं कि एक्चुअली वेक्टर किस तरफ था। तो इस डिस्कशन को मजीद मैच्योर करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ द वेंट्रिकुलर क्यूआरएस एंड इट्स सिग्निफिकेंस है क्या। सो लेट्स स्टार्ट डाइविंग फर्दर डीप इनटू द डिस्कशन। अगर हम वेक्टोरियल एनालिसिस की अब तक हमने जितनी डिस्कशन की है उसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो लेट मी टेल यू दिस कि जब कभी आप ईसीजी देखेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर लुकिंग एट एन ईसीजी, तो उसमें आपने 3 लीड्स देखनी है। ऑब्वियसली और भी लीड्स देखनी है, हम अगले चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम चेस्ट लीड्स एंड ऑगमेंटेड लीड्स एंड द अदर वंस, बट फॉर नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि एक्सिस डेविएशन के लिए आपने लीड 1, लीड 2 और लीड 3 को देखना है, और ये देख के आप ये बता सकते हो कि इफ द एक्सिस ऑफ द हार्ट इज नॉर्मल or if there is any deviation of the axis. When we say axis की deviation, इसका मतलब ये है कि जो मीन वेक्टर बन रहा है हार्ट की डीपोलराइजेशन का, पर्टिकुलरली वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का, तो वो नॉर्मल डायरेक्शन में है या कोई एक्सिस डेविएशन है। बिकॉज एक्सिस डेविएशन का मतलब ये है कि सो व्हाट इज एक्सिस डेविएशन, लेट मी स्पेंड अ फ्यू मिनट्स हियर। सपोज दिस इज अवर हार्ट, सो इफ द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज दिस व्हिच इज अबाउट 50 और 55 to 60 degrees, if this is the direction, this is normal. नॉर्मल का मतलब ये है कि कोई एक्सिस डेविएशन नहीं है। लेकिन समटाइम्स होता ही है कि देयर आर सम पैथोलॉजीज। सो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, तो जो एक्सिस है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ईसीजी देख के आप ये बता सकते हो कि लेफ्ट हाइपरट्रॉफी है या नहीं है, यानी लेफ्ट हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स हाइपरट्रॉफीड हैं या नहीं है। अब लेफ्ट मस्कुलर हाइपरट्रॉफी की फर्दर फिर बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं। वन ऑफ देम फॉर एग्जांपल इज एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस है या
देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द वाल्व और देयर इज हाइपरटेंशन, सो इन तमाम कंडीशन में लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इट विल बी हाइपरट्रॉफिड। इसी तरह राइट साइड का अगर वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफिड है सच एज इन कॉर परमोनेल या लंग कोई डिसऑर्डर्स हैं, सो राइट साइड के प्रॉब्लम में देयर मे बी हाइपरट्रॉफी ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर मसल एंड दिस विल बी देन नोन एज द राइट वेंट्रिकुलर एक्सिस डेविएशन। सो देयर इज अ नॉर्मल एक्सिस, तीन कैटेगरीज हैं जो हम ECG पर देखते हैं एंड वी हैव टू कमेंट ऑन दिस कि इफ दिस इज नॉर्मल एक्सिस, if this is right axis deviation, if this is left axis deviation, because अगर deviations हैं then you have to think about what pathology may be the underlying cause, फिर यहाँ से आपको pathologies के बारे में सोचना होता है। So that is going to be extremely significant thing to actually know how to interpret the axis deviation। So सबसे पहले हम नॉर्मल ECG की बात करते हैं। बेसिकली करना आपने ये है, मैं अभी ये सारा टेक्स्ट आपके लिए क्विकली पढ़ भी देता हूँ बट लेट मी टेल यू द स्टोरी इन शॉर्ट। बात ये है कि आपने ऑल द टाइम यू हैव टू लुक एट लीड 1 एंड लीड 3। आप लीड 1 और लीड 3 को देखें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ECG पर लीड 1 और लीड 3 में जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है। इफ इट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन तो वो बेसिकली बेसलाइन से ऊपर होगा, यानी ऊपर की तरफ उसका ग्राफ मूव कर रहा होगा। If it is in the negative direction, then it will be going below the baseline. So that's below the baseline, that's above the baseline. So the first thing you need to understand कि lead 1 देखना है, उसमें देखना है ये जो QRS complex है ये ऊपर की तरफ है या एक्सिस 0 लाइन से नीचे की तरफ है। इसी तरह lead 3 आपने देखना है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं lead 1 में पूरे का पूरा जो QRS complex है it looks like above the 0 level. lead 2 में भी it looks above the 0, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ lead 2 नहीं, आपने lead 1 देखनी है और लीड 3 देखनी है। अच्छा, लीड 3 में एज वी कैन सी कि कुछ पार्ट इसका ऊपर की तरफ है लाइन से, बेस लाइन से, 0 रेफरेंस लाइन से, और कुछ पार्ट नीचे की तरफ है। सो बेसिकली अगर ऐसा सिनेरियो हो कि कुछ पार्ट ऊपर की तरफ हो कुछ पार्ट नीचे की तरफ हो, देन यू ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन। मुझे बताएं ऊपर वाला पार्ट ज्यादा है या नीचे वाला पार्ट ज्यादा है? ऑब्वियसली ऊपर वाला पार्ट ज्यादा है तो नेट वेक्टर ऊपर ही की तरफ होगा ना, सो दैट्स द पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। सो लीड 1 में in this particular scenario there is a positive deflection और lead 3 में भी there is a positive deflection and these are the two leads that you have to look। जब कभी ECG आपके हाथ में आए तो एक्सिस डेविएशन के लिए आपने lead 1 देखना है, lead 3 देखना है। अब lead 3 में भी positive deflection है और lead 1 में भी, दोनों में 1 and 3 दोनों में positive deflection है। अब ये डायग्राम आपको पता है कि how does this diagram work। there is lead 1, there is लीड 2 ड्रॉ नहीं की हुई क्योंकि मैंने आपसे कहा कि व्हाट वी हैव टू लुक एट इज लीड 1 एंड लीड नंबर 3। ये आपने दोनों लीड्स देखनी है। सो हमने लीड 1 ड्रॉ की हुई है और लीड 3 ड्रॉ की हुई है। अब लीड 1 में जो डायरेक्शन ऑफ डिपोलराइजेशन है दैट इज अ पॉजिटिव वेव। सो व्हाट वी डू इज ड्रॉ अ पॉजिटिव एरो ऑन लीड 1। सो दिस इज लीड 1 एंड दिस इज द पॉजिटिव एरो। लीड 3 में भी नेट डायरेक्शन पॉजिटिव है, सो वी ड्रॉ अ पॉजिटिव एरो। पॉजिटिव एरो का मतलब ये है कि हेड ऑफ द एरो शुड बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो लीड 1 में भी हमने ऐसा एक एरो बना दिया जिसका जो हेड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है और लीड 3 में भी एक ऐसा एरो बना दिया जिसका जो हेड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है। ठीक हो गया। अब आपने करना ये है कि जो लीड 1 का एरो आपने ड्रॉ किया है और लीड 3 का जो एरो ड्रॉ किया है, इन दोनों का लीड 1 पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, स्केल रख के सीधा नीचे ले जाएंगे लाइक दिस, इट गोज डाउन लाइक दिस। सो ये बेसिकली परपेंडिकुलर है 90 डिग्री टू लीड 1 एक्सेस। एक ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब लीड 3 पे भी आपने जो एरो बनाया था उससे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, सो दैट गोज लाइक दिस, ओके। और ये रहा इसका परपेंडिकुलर एंगल। सो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी लीड 1 के एरो के साथ, एक लीड 3 के एरो के साथ। ये दोनों लाइंस ऑब्वियसली इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ना एक दूसरे के साथ, सो दैट्स द पॉइंट वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर। सो ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां इसका हेड ड्रॉ कर लीजिए और पीछे जहां ये दोनों एरोज जो आपने ECG देख के ड्रॉ किए थे ये इसकी बेस हो जाएगी एंड दैट विल बी द पॉजिटिव साइड ऑफ द एरो, दैट इज द नेगेटिव साइड ऑफ द एरो। अब आप मुझे ये देख के बताएं कि ये जो और इसका आप एंगल मेजर कर लीजिए। सो दिस एरो विच यू हैव ड्रॉन, इसका एंगल मेजर कर लें। सो दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 5960। सो दैट लुक्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। यानी आपने बेसिकली क्या किया,
हमने बेसिकली पहले इसी स्टेप्स क्या हैं देखें, अब तक आपको मुख्तलिफ चीज़ें समझाई जा रही हैं इस चैप्टर में. नाउ यू हैव ऑल द गैजेट्स एंड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, सो नाउ यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट द क्लिनिकल सिनेरियो. क्लिनिकली ज़रा सोचें कि आपके हाथ में ECG है. ECG में आपको ये सब पहले नहीं दिखेगा, ECG में आपको ये वेव्स दिखेंगी. तो ECG उठाते ही आपने लीड 1 देखनी है और लीड 3 देखनी है, और साथ में एक एरो ड्रॉ कर लेना है. लीड 1 में भी इट्स अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, तो एरो ऊपर की तरफ बना दिया. लीड 3 में भी नेट डिफ्लेक्शन पॉजिटिव है, तो एरो ऊपर की तरफ बन गया. अब आप ये वेक्टर एनालिसिस के डायग्राम बनाएं. लीड 1 बनाइए, लीड 3 बनाइए. लीड 1 का एरो इस पे ड्रॉ कर दें लीड 1 पे, लीड 3 का एरो इस पे ड्रॉ कर दें लीड 3 पे. चूंकि दोनों पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है तो एरो इस तरह से बने कि लीड 1 के एरो का हेड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है. सो दैट इज द फर्स्ट एरो दैट वी हैव ड्रॉन. फिर लीड 3 का हमने एरो ड्रॉ कर दिया. अब इन दोनों एरोज से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, इस परपेंडिकुलर लाइन जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट ये वाला हो गया, तो एक ये पॉइंट, और दूसरा जहां लीड 1 और लीड 3 के एरोज आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया. इन दो पॉइंट्स के बीच में एक एरो बना दीजिए विद द हेड ऑफ द एरो टुवर्ड्स द इंटरसेक्शन लाइन ऑफ, जो आपने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की थी उनका इंटरसेक्शन पर इसका हेड ड्रॉ कीजिए. सो दैट्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द एरो एंड दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ द एरो, और यहां से फिर आप एंगल मेजर कर लेंगे. सो दैट इज हाउ यू जस्ट बाय लुकिंग एट द ECG you can tell if this is a normal axis ECG or a deviated axis. क्योंकि अभी मैं आपको deviated axis ECG दिखाता हूं. So for example, now look at this ECG. ये एक real ECG स्ट्रिप आपके सामने मौजूद है. सो ये डायग्राम अभी मत देखें, इसको भूल जाओ, सिर्फ ये देखो एंड लेट्स ट्राई टू मेक सेंस. व्हाट डू वी हैव? वी हैव 3 लीड्स, और 3 लीड्स में से मुझे कौन कौन सी लीड्स देखनी है एक्सिस डेविएशन के लिए? लीड 1 देखनी है और लीड 3 देखनी है. ऐसा ही है ना? लीड 1 और लीड 3 में से सबसे पहले मैं देखता हूं लीड 1. सो ये अगर इसकी बेसलाइन है, सो लीड 1 में QRS कॉम्प्लेक्स मुझे बताइए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इट्स पॉजिटिव, ऊपर की तरफ है. सो दैट्स अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन. लेकिन लीड 3 में देखें, अगर मैं ये बेसलाइन ड्रॉ करता हूं तो इट्स टुवर्ड्स द डाउन साइड, रेफरेंस लाइन के नीचे है. सो दैट्स अ नेगेटिव डिफ्लेक्शन. ठीक हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई? सो दैट्स अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन एंड दैट्स अ नेगेटिव डिफ्लेक्शन. लीड 1 में पॉजिटिव है और लीड 3 में नेगेटिव है. अब ये डायग्राम हमको बनानी है वेक्टर डायग्राम, यानी आपने पॉजिटिव और नेगेटिव डिटरमाइन कर लिया दोनों लीड्स में, लीड 1 और 3 में. अब ये वेक्टर डायग्राम बनानी है. तो वेक्टर डायग्राम एग्जैक्टली यही वाली डायग्राम दोबारा ड्रॉ जरा करें. लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम. ये मैं लीड 1 बना रहा हूं जिसका नेगेटिव एंड इधर है और पॉजिटिव एंड इधर है, बिकॉज राइट आर्म पे नेगेटिव लगाते हैं इलेक्ट्रोड. देखें, राइट आर्म पे नेगेटिव और लेफ्ट आर्म पे पॉजिटिव. और जो लीड 3 मुझे ड्रॉ करनी है विच इज समथिंग लाइक दिस, और इसकी डायरेक्शंस क्या होती हैं? द डायरेक्शन इज लेफ्ट आर्म एंड द राइट लेग. राइट लेग पे वी पुट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और लेफ्ट आर्म पे वी पुट नेगेटिव इलेक्ट्रोड. सो दिस इज व्हाट वी हैव नाउ. ओके, ECG ये है जिसको हमने इंटरप्रेट करना है. मैं कलर चेंज करता हूं वेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए ताकि ये बात समझ में आ जाए. सो लीड 1 पे मुझे एक एरो बनाना है. अगला स्टेप ये है, वो एरो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा. पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब ये है कि आई हैव टू मेक एन एरो इन दिस डायरेक्शन, और ये बन गया मेरा पॉजिटिव एरो. पॉजिटिव एरो क्यों है ये? व्हाई आई एम कॉलिंग दिस अ पॉजिटिव एरो? बिकॉज इसका जो हेड है दैट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये पॉजिटिव ही था ना लीड 1 में, इसीलिए मैंने पॉजिटिव एरो बनाया है. लीड 3 में जो मैं एरो बनाऊंगा वो मुझे नेगेटिव एरो बनाना है. नेगेटिव एरो का मतलब ये कि इस तरह का वो एरो बनेगा इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज हेड अब मैंने प्लेस कर दिया है टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, और यही यहाँ पे था. इट वॉज अ नेगेटिव रीडिंग. लीड 3 में इट वॉज अ नेगेटिव रीडिंग. सो मैंने जो एरो बनाया लीड 3 वाला, दैट एरो इज टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. उसका हेड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है. तो ये मेरे दोनों वेक्टर्स मैंने बना लिए इस ECG को देख के. अब मुझे क्या करना है? नाउ आई हैव टू डू प्रोजेक्शंस. याद है दैट इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, कि अब आपने यहां से, यानी लीड 1 का, दैट वाज लीड 1 एंड दिस इज लीड 3. सो लीड 1 और लीड 3, इन दोनों पे जो हमने एरोज ड्रॉ किए हैं, इनसे अब हमें परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है. ऐसे ही था ना? सो एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉ करूंगा, एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉ करूंगा. जहां ये परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी इस पॉइंट से, और जहां ये दोनों एरोज मिल रहे हैं इस पॉइंट से, मुझे एक वेक्टर ड्रॉ करना है लाइक दिस. तो अब ये डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बन गई ये डायरेक्शन. ठीक है? सो दिस विल बी द पॉजिटिव एंड ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस विल बी द नेगेटिव एंड. अब मुझे बताइए, क्या ये आपको नॉर्मल लुकिंग वेक्टर लग रहा है? नहीं. नॉर्मल लुकिंग वेक्टर इस डायरेक्शन में जाता है, ये तो इस तरफ जा रहा है, और ये इस तरफ कौन सा तरफ है? दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट, दिस इज द राइट साइड ऑफ द पेशेंट. और ये जो एक्सिस है, जो वेक्टर एनालिसिस के बाद मैंने एक्सिस ड्रॉ किया, वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया है. दिस इज व्हाई वी कॉल दिस लेफ्ट
एक्सिस डेविएशन. सो लेफ्ट एक्सिस, अब इस डायग्राम को यहाँ देख लें. सो जितना डिस्कशन अभी मैंने किया वो सारा इस डायग्राम पर ड्रॉन है. अलग से मैंने इसलिए बना दी थी डायग्राम ताकि आपको स्टेप्स क्लियर हों. सो यहाँ स्टेप नंबर 1, व्हाट वाज स्टेप नंबर 1? वी लुक्ड एट द ईसीजी, लीड नंबर 1 एंड लीड नंबर 3. लीड नंबर 1 पे बेसलाइन से ऊपर है, सो इट्स अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन. लीड नंबर 3 में इट्स बिलो द बेसलाइन, सो इट्स अ नेगेटिव डिफ्लेक्शन. अब मैंने लीड 1 की लाइन ड्रॉ की, ये वाली. लीड 3 की लाइन ड्रॉ की, ये वाली. ये जब लाइन ड्रॉ कर ली, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि मुझे लीड 1 का वेक्टर ड्रॉ करना है लीड 1 की लाइन पर. सो ये एक पॉजिटिव वेक्टर था, तो मैंने ये वेक्टर इस तरह से ड्रॉ कर दिया, विच इज हेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. लीड 3 पे चूंकि नेगेटिव था, सो मैं यूं नहीं ड्रॉ करूंगा. अगर यूं ड्रॉ करूंगा तो इसका मतलब लीड 3 पॉजिटिव है, लेकिन यहां लीड 3 पॉजिटिव नहीं है, यहां लीड 3 नेगेटिव है. सो आई एम ड्रॉइंग द वेक्टर लाइक दिस ताकि हेड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हो. ये काम हो गया, तो बस अब मैंने इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए. परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो ये बन गया मेरा एक्सिस, और एक्सिस लेफ्ट साइड पे डेविएटेड है. सो दैट इज एन ईसीजी ऑफ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. एक दो और ईसीजी देख लें ताकि आपको पता हो. अच्छा, फिर ये हम पैथोलॉजी में ऑब्वियसली डिस्कस कर रहे होंगे कि जो एक्सिस डेविएशंस हैं, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के कॉजेज क्या हैं. सो फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर देयर इज अ शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, उसके एक कॉज तो ये हो सकती है कि देयर इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. देयर कैन बी अदर कॉजेज. देयर कैन बी कॉजेज लाइक एओर्टिक स्टेनोसिस, हाइपरटेंशन. ऑल दीज थिंग्स कॉजेज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. ठीक है, हाइपरटेंशन इज अ वेरी कॉमन. सो अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, आप उसका ईसीजी देखेंगे तो वो ईसीजी इस तरह का आपको नजर आएगा. लीड 1 में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव, लीड 3 में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नेगेटिव. सो इफ यू सी समथिंग लाइक दिस, you do the vector analysis and you prove that there is a left axis deviation. It can also be because of aortic stenosis, aortic valvular regurgitation, or any congenital heart abnormality. All these things can cause left axis deviation. Right axis deviation can also be because of a lot of different things. अभी उसकी भी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ. Right axis deviation are more because of the pulmonary problems, because of the problems which are also embryological, such as tetralogy of Fallot, interventricular defects, even dextrocardia. Dextrocardia में हार्ट पूरा राइट साइड पे शिफ्टेड होता है. दैट विल ऑल्सो कॉल्ड लेफ्ट राइट एक्सिस डेविएशन. सो अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, दिस पर्टिकुलर डायग्राम, एंड लेट्स ट्राई टू रीमेमोराइज द कॉन्सेप्ट जो अभी हम डिस्कस किए. सो सपोज ये पेशेंट का ईसीजी आपके हाथ में है, ठीक है. सो यू हैव द ईसीजी इन योर हैंड, एंड व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन इज द एक्सिस. और एक्सिस कैसे डिटरमाइन करते हैं? यू लुक एट लीड नंबर 1 एंड लीड नंबर 3. लीड नंबर 1 में सिनेरियो क्या है? बेस लाइन ड्रॉ करो, ये नीचे की तरफ जा रहा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, सो इट्स अ नेगेटिव डिफ्लेक्शन. लीड 3 में बेस लाइन ड्रॉ करो, ऊपर की तरफ जा रहा है, सो इट्स अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन. अब अपने एक्सिस बनाना शुरू करो. सो दिस इज लीड 1 एक्सिस एंड दिस इज लीड 3. डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए, और ये हम बार बार डायरेक्शंस कर रहे हैं. द डायरेक्शंस ऑफ लीड 1 आर नेगेटिव ऑन द राइट साइड, पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट साइड, और लीड 3 की डायरेक्शन होती हैं नेगेटिव ऑन द पॉइंट वेयर द लेफ्ट आर्म इज ज्वाइनिंग एंड पॉजिटिव ऑन द पॉइंट वेयर राइट लेग इज ज्वाइनिंग. ठीक है. नाउ lead 1 में what was it? A negative deflection. So negative deflection in lead 1 will be something like this. Let me draw it here. So a negative deflection would be something like this. So this is lead 1. दिस इज लीड 1, और इस पर नेगेटिव डिफ्लेक्शन. हेड मैंने अब नेगेटिव की तरफ कर दिया है. क्यों नेगेटिव की तरफ कर दिया? इस तरफ क्यों नहीं बनाया? इस तरफ इसलिए नहीं बनाया बिकॉज यहाँ पॉजिटिव है नहीं ना. देयर इज नो पॉजिटिव, देयर इज नेगेटिव डिफ्लेक्शन. बेस लाइन के नीचे है लीड 1 में, सो मैंने नेगेटिव साइड पे बना दिया. जबकि लीड 3 में इट्स अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन. सो लीड 3 की डिफ्लेक्शन ये रही, पॉजिटिव. सो दैट्स अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, हेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन. जब ये कर लिया, इसके बाद द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स व्हिच वी हैव जस्ट ड्रॉन. अब मैं अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो इट विल बी something like this, और अगर मैं इस एक्सिस का परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. अब ये पॉइंट मेरे पास आ गया जहां पे परपेंडिकुलर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. तो ये एरोज जहां पे एक दूसरे के साथ बैक साइड पे क्रॉस कर रहे थे, यहां से लेके इस पॉइंट तक मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा. तो अब ये जो मेरा एक्सिस का वेक्टर बना है, ये भी नॉर्मल नहीं है. नॉर्मल इज समथिंग लाइक दिस, 59 डिग्रीज. ये एक्सिस जा रहा है इधर. ये कौन सा साइड है? दिस इज द राइट साइड ऑफ द पेशेंट, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट. सो दिस इज कॉल्ड राइट एक्सिस डेविएशन. सो आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो ईसीजी है, दिस इज द डायग्राम, एंड ये देखें इसी तरह की डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ हुई हुई है. लीड 1 का इन्होंने नेगेटिव डायरेक्शन में बना दिया, लीड 3 का पॉजिटिव डायरेक्शन में बना दिया, इसका परपेंडिकुलर उसका परपेंडिकुलर, और ये बन गया एक्सिस का वेक्टर. एंड नाउ विदाउट लुकिंग एट द डायग्राम हमने ये सब डिस्कस किया है. लेट्स लुक इफ दिस इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड देयरफॉर देयर इज राइट एक्सिस डेविएशन. सो दिस इज द डायग्राम शोइंग राइट एक्सिस डेविएशन. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब कभी आप वेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं, सो वन थिंग दैट
एक्चुअली ईसीजी देख के बहुत सारी चीजें आपको आंसर करनी होती है. वन ऑफ देम इज द एक्सिस डेविएशन. सो एक्सिस डेविएशन को आपने आज अच्छी तरह से समझ लिया कि हाउ डज दैट वर्क. ओके, अब एक और भी आपको बात याद रखनी है कि जो कॉजेज हैं राइट और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के, दीज आर सो मेनी डिफरेंट कॉजेज, जिनमें से एक कॉजेज बंडल ब्रांच ब्लॉकेज भी है. सो इफ देयर इज अ राइट बंडल, जो भी ब्लॉकेज होगा उस तरफ डेविएशन होगा. इफ देयर इज राइट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज देन राइट डेविएशन हो जाएगा. इफ देयर इज लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज तो लेफ्ट डेविएशन होगा. इफ देयर इज हाइपरटेंशन तो लेफ्ट डेविएशन. सो यू हैव टू रिमेंबर द कॉजेज एंड बाय लुकिंग एट द ईसीजी फर्स्ट थिंग यू डिटरमाइन इसके एक्सिस किस तरफ डेविएटेड है, नॉर्मल एक्सिस है या डेविएटेड एक्सिस है. अगर राइट एक्सिस डेविएशन है देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ राइट एक्सिस डेविएशन, और फिर उन कॉजेज की फर्दर आप साइंस एंड सिम्टम्स ढूंढते हैं पेशेंट में. सो फॉर एग्जांपल अगर किसी को पल्मोनरी प्रॉब्लम है तो यू गो फॉर फाइंडिंग द पल्मोनरी प्रॉब्लम्स. अगर आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलता है एंड यू आर थिंकिंग अबाउट हाइपरटेंशन, यू टेक द ब्लड प्रेशर, इट विल बी हाई, सो यू काइंड ऑफ मेक अ डायग्नोसिस कि मे बी द लेफ्ट एक्सिस डेविएशन इज बिकॉज ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, थिंग्स लाइक दैट, you know. So now it should be making sense to you कि ECG देख के आपने एक्सिस कैसे बताना है. अगेन इसकी जरा प्रैक्टिस कीजिएगा कि इसमें कौन सा एक्सिस डेविएशन है. बाय लुकिंग एट इट आई कैन टेल यू लीड 1 में पॉजिटिव है, लीड 3 में नेगेटिव है, इट्स अ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. ओके, सो दैट्स अ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. लीड 1, लीड 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करें, लेफ्ट साइड पे डेविएट हुआ हुआ है, सो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. सो दैट्स बेसिकली ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर हेडिंग. ये सारा जो अभी हमने डिस्कस किया है इट्स ऑल रिटन हियर, एंड ये सारा मेरा डिस्कशन सुनने के बाद अब जरा ये टेक्स्ट पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा. ओके, कि किस केसेस में राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो रहा है, किस केसेस में डेविएशन किधर हो रही है. लेट्स नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट हेडिंग व्हिच इज अबाउट द वोल्टेजेस ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. अब वोल्टेज की कहानी ये है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देयर शुड बी द अंडरस्टैंडिंग इन प्लेस के वोल्टेज मेजर कैसे करते हैं. सो नॉर्मली द वोल्टेजेस इन 3 स्टैंडर्ड बाइपोलर लिम्ब लीड्स आर मेजर्ड फ्रॉम द पीक ऑफ द आर वेव to the bottom of the S wave. So QRS complex कोई भी उठा करके देख लें. So if this for example is the QRS complex, so ये peak of the R wave है, this is the bottom of the S wave, तो ये QR ये पूरा voltage है. So that's the voltage of the ventricular depolarization which vary between 0.5 to 2 millivolts. ठीक है, लीड 3 में यूजुअली सबसे कम वोल्टेज होता है, लीड 2 में सबसे ज्यादा वोल्टेज होता है. आप कोई भी ECG अगर आप देखेंगे, so let's have a look for example, ये तो खैर abnormal ECGs हैं. नॉर्मल आप कोई भी ECG देखते हैं, so that is how it is. Lead 2 में it is the highest voltage and lead 3 में it is the lower voltage. ठीक है, and in general when the sum of the voltages of all QRS complexes of the 3 standard leads is greater than 4 millivolts. So see my video on the ECG basics जिसमें मैंने ये बताया कि voltage actually किस तरह कैलकुलेट करते हैं. एक small box is equal to how many millivolts. So अगर cumulative voltage तमाम standard bipolar limb leads में 4 millivolts से ज़्यादा है, this is when you say this is a high voltage of the ECG for QRS depolarization. और ये high voltages की there can be so many causes. The most common one is the hypertrophy of the muscle. जितना ज्यादा मसल मास होगा उतना ज्यादा ऑब्वियसली पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा. जितना पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना वोल्टेज ज्यादा होगा, और ये पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन से मतलब ये है हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल. सो अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी फॉर एग्जांपल है, सो देयर विल बी हाई वोल्टेज, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. ओके, एंड देन लो वोल्टेजेस भी होते हैं. So ये हाई वोल्टेज की बात समझ में आ गई. फॉर एग्जाम्पल द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी व्हेन इट मस्ट पंप ब्लड थ्रू द स्टेनोरिक पल्मोनरी वाल्व. अगर पल्मोनरी वाल्व में प्रॉब्लम है या पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर एलिवेटेड है, तो इन तमाम सिनेरियोज में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी. दस इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ द मसल, चाहे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो. हाइपरट्रॉफी मीन्स देयर इज मोर मसल, और अगर मसल ज्यादा होगा तो इंक्रीज्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड मोर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए हाई वोल्टेज. अच्छा, लो वोल्टेजेस भी होंगे. लो वोल्टेजेस आर यूजुअली कॉमन इन ओल्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शंस, in diminished muscle mass. So if the muscle mass is reduced for any reason, या कोई पुराना MI है तो वहाँ पे भी जो muscle है that will also have low voltages. Consequently this condition causes some prolongation of the QRS complex. ये भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. But the idea of the low voltage is कि there is less muscle tissue. या तो less muscle tissue है, एक condition और हो सकती है. Suppose if this is the heart
और इस हार्ट के इर्द गिर्द ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है इसमें से फॉर एग्जांपल फ्लूइड भरा हुआ है, सो इफ देयर इज पेरिकार्डियल फ्लूइड, इस कंडीशन में भी वोल्टेज ट्रांसमिट नहीं होगा टू द सरफेस, और अगर सरफेस तक वोल्टेज ट्रांसमिट नहीं होगा तो ECG लीड्स में इट विल बी रेड एज लो वोल्टेज. ओके, सो डिक्रीज वोल्टेज इज ऑल्सो कॉज्ड बाय सम सराउंडिंग problems around the heart. So for example, one of the most important cause of decreased voltage in the ECG lead is excessive fluid in the pericardium, which is what we call the pericardial effusion. यानी अगर pericardial space में liquid है because of any reason, या if there is pleural effusion तो lungs के इर्द गिर्द भी, because पूरे ECG का थीम क्या है कि ECG में जो हार्ट है उससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सरफेस तक ट्रांसफर होती है और सरफेस पे हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं, वो इलेक्ट्रोड इसको रीड करता है. सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम कि जिसकी वजह से कंडक्शन ऑफ द वोल्टेज फ्रॉम द हार्ट टू द सरफेस नहीं हो रही, अब ये या तो हो सकता है सिनेरियो में कि हार्ट मसल ही नहीं है, बहुत फीबल हार्ट है, या दूसरी सिनेरियो में कि हार्ट इज सराउंडेड बाय फ्लूइड या लंग्स आर सराउंडेड बाय फ्लूइड, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है या प्लूरल इफ्यूजन. इन तमाम कंडीशंस में देयर विल बी लो वोल्टेज ट्रांसफर फ्रॉम द हार्ट टू द सरफेस, इसीलिए वो रीड होगा ECG एज लो वोल्टेज ECG. ओके, पल्मोनरी एम्फाइसीमा इज अनदर प्रॉब्लम. यहाँ पानी की बजाय लंग्स में क्या भरा हुआ होता है? air, and because of those air cavities voltage is not transmitted appropriately. ठीक हो गया? So all this is clear. We talked about axis deviation, we talked about voltages, and now we have to talk about some particular scenarios जिसमें there is prolonged QRS complex. देखिए QRS complex का अपना टाइमिंग है. The QRS complex lasts as long as the depolarization continues. कहाँ की depolarization? Ventricle की depolarization. ठीक है? That is as long as the part of the ventricle is depolarized and part still is polarized. Therefore, prolonged conduction of the impulse through the ventricle always causes prolonged QRS. Prolonged QRS का मतलब ये है कि if the QRS timings are greater than normal timings, it means कि जो depolarization wave है उसको conduct होने में time लग रहा है. Such prolongation often occurs when one or both the ventricles are hypertrophied or dilated because of the longer pathway which the impulse must travel. The normal QRS complex lasts 0.06 to 0.08 seconds, whereas in hypertrophied you can see 0.09 to 0.12 seconds. So if there is hypertrophy or if there is dilatation, then the QRS complex will be a broader one, will be taking more time because there is more tissue through which the depolarization wave has to actually go through. Okay? या एक तो ये सिनेरियो है कि जिसमें देयर इज मोर मसल मास जिसकी वजह से QRS कॉम्प्लेक्स का टाइम बढ़ जाता है. दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि देयर इज अ ब्लॉकेज एनीवेयर इन द कंडक्शन सिस्टम, पर्टिकुलरली द पुरकंजी सिस्टम. अब पुरकंजी सिस्टम का काम है कि पूरे वेंट्रिकल्स में कार्डियक इंपल्सेस को पहुंचाना. इफ देयर इज ब्लॉकेज वो इंपल्सेस नहीं पहुंचेंगी, देर से पहुंचेंगी, सो दैट विल ऑल्सो लीड टू डिलेड या ब्रॉडेंड या प्रोलॉन्ग्ड QRS कॉम्प्लेक्स एज लॉन्ग एज समटाइम्स 0.14 सेकेंड. In general, a QRS complex is considered to be abnormally long when it lasts more than 0.09 seconds. ठीक है? When it lasts more than 0.12 seconds, the prolongation is almost certainly caused by a pathological block somewhere in the conduction system, such as the Purkinje fiber. So just by looking at the ECG, you can have a clue कि if it is because of hypertrophy or if it is because of conduction problems such as blockage of the Purkinje system or blockage of the bundle branches. Okay? So pretty important discussion, huh? Conditions that causes bizarre QRS complexes. Bizarre pattern of the QRS complexes are usually caused by two conditions. Number one, destruction of the cardiac muscle. Cardiac muscle destroy होगा तो depolarization wave conduct नहीं होगी. Then multiple small local blocks of conduction in the Purkinje system. ये बात हमने already कर ली अभी ऊपर के paragraphs में. Okay. Now I have to talk about another very important part of this chapter, which is the current of injury. Now, many different cardiac abnormalities, especially those that damage the heart muscle, may cause part of the heart to remain partially or totally depolarized at all the times. When this condition occurs, current flows between the pathologically depolarized and normally polarized areas, even between the heartbeats. So अब हो ये रहा है कि नॉर्मल आपका जो हार्ट था उसमें तो पूरा एक सेट पैटर्न था कि बेस ऑफ द हार्ट है वो नेगेटिव होना शुरू होगा, एपेक्स ऑफ द हार्ट पॉजिटिव होगा एंड वेक्टर इस तरह से होगा. अब सपोज हार्ट के अंदर एक ये पार्ट है, किसी वजह से ये डैमेज हुआ है एंड दिस इज नाउ डीपोलराइज ऑल द टाइम, हर वक्त नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली करंट डिफ्लेक्शंस डिस्टर्ब हो गई ना. दिस कंडीशन इज कॉल्ड करंट ऑफ इंजरी. तो ये जो मूवमेंट ऑफ वेक्टर होगी या मूवमेंट ऑफ डीपोलराइजेशन होगी, दैट इज एबनॉर्मल एंड दिस इज कॉल्ड करंट ऑफ इंजरी.
करंट ऑफ नॉर्मल डीपोलराइजेशन तो नॉर्मल है, लेकिन ये करंट ऑफ इंजरी है. नोट स्पेशली दैट द इंजर्ड पार्ट ऑफ द हार्ट इज नेगेटिव बिकॉज दिस इज द पार्ट दैट इज डीपोलराइज्ड and emits negative charges into the surrounding fluid, whereas the remainder of the heart is neutral or in positive polarity. So this is an important thing to remember कि जो damaged part है that is usually in a depolarized state, which means it is usually in the negative state. Some abnormalities that can cause current of injury are as follows. There is mechanical trauma and infectious diseases, ischemia of the local areas due to coronary blood flow problems. So all these can cause current of injury. So whenever there is current of injury, it's a pathological condition. Effect of current of injury on the QRS complex. In figure 1217, which is this particular figure जो भी हम discuss करेंगे, a small area in the base of the left ventricle is newly infarcted. Now look here, this is the infarcted area, okay? And obviously this is not normal. Therefore, during the TP interval, is when the normal ventricular muscle is totally polarized. Abnormal negative current still flows from the infarcted area at the base of the left ventricle and spreads towards the rest of the ventricle. अब देखो आपको हार्ट का पूरा साइकिल में यहाँ पीछे एक डायग्राम थी, बड़ी ज़बरदस्त कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, बट वो मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, सो आई एम प्रीटी श्योर कि वो आपको समझ में आ गई होगी. ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल के डिफरेंट स्टेप्स थे ना, स्टार्ट में फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर पार्ट, और फिर ये बढ़ रही है डीपोलराइजेशन. देयर वाज अ टाइम, दिस वन, व्हेन द डीपोलराइजेशन इज कंप्लीट वेंट्रिकल इज नाउ डीपोलराइज्ड. इस वक्त भी देयर इज अ रीपोलराइजेशन अगर हो भी जाएगा इस पूरे पार्ट का, then still there will be a part in the current of injury, चूंकि वो डैमेज है, it will still be emitting current. So that part will still be emitting current. So even when the total heart has gone through the cycle of depolarization and repolarization, there will still be a current. Okay. Now the vector for this current of injury as shown in figure 1217 अभी देखते हैं, is in the direction of about 125 degrees with the base of the vector, the negative end, क्योंकि ये अगर वेक्टर है और ये वेक्टर का हेड है, तो हेड is towards the positive end and this is called the negative end of the vector. Now base of the vector, which is the negative end, towards the injured muscle as shown in the lower portion of the figure. Even before the QRS complexes begins, this vector causes an initial record in the lead 1 below the zero potential line. So if you look at this diagram, अभी normal depolarization start भी नहीं हुई है, लेकिन चूंकि ये current flow कर रहा है, and since this current is flowing, what you see is a deflection in lead 1. You already see this. Because अगर मैं इस एक particular diagram को analyze करूं, so this is the direction. If I draw this particular direction in our axis diagram, this is lead 1, lead 2 and lead 3, and now you are familiar with the diagram. So हम ये arrow उठा करके अगर यहाँ लग दें और इस arrow को यहाँ रखने के बाद इसके हम extended perpendicular projected vectors बनाएं, तो projected vectors से हमें ये पता लग रहा है कि lead 1 में there is a negative deflection. कैसे मैं अभी दोबारा explain नहीं कर रहा, पूरा वीडियो में मैं ये already explain कर चुका हूँ. Lead 2 में there will be a positive deflection और lead 3 में there will be a positive deflection. But even before the start of the depolarization अभी इस direction वाली तो start होगी, उससे पहले ही यहां से डीपोलराइजेशन का करंट नजर आ रहा है, तो लीड 1 में यू सी अ नेगेटिव डिफ्लेक्शन. सो दैट्स अ नेगेटिव डिफ्लेक्शन इन लीड 1. सो हियर इज द करंट, और ये पूरा करंट चलता रहेगा. नॉर्मल डीपोलराइजेशन का साइकिल अलग चल रहा होगा और ये सारी एबनॉर्मल वेव्स आपको अलग दिख रही होंगी, जो कि आपको नजर आ रही हैं यहाँ पर इन द ECG below the baseline. Because they are below the baseline, you see all of this is below the baseline. This is all below the baseline के नीचे, ये baseline है उसके नीचे. So lead 1 में you find all these, and this is what we call the current of injury. So ये current of injury normal तो नहीं है ना, because the projected vector of the current of injury in lead 1 points toward the negative lead of axis lead 1. In lead 2, the record is above the line, therefore it is positive. In lead 3, the projected vector points in the same direction, it is positive as well. So if you see in lead 1, it is below the baseline, lead 2 above the baseline, lead 3 above the baseline. Okay. As the heart then proceeds through its normal process of depolarization, the septum first becomes depolarized. ये normal cycle है. Then the depolarization spreads from the base to the apex and back towards the base in the ventricle. ये हम सब पढ़ चुके हैं. The last portion of the ventricle to become totally depolarized is the base of the right ventricle, because the base of the left ventricle is already totally and permanently depolarized. By vectorial analysis, the successive stages of ECG, and then, well, this is all done. When the heart becomes
becomes totally depolarized. At the end of the depolarization process, all ventricular muscle is in the negative state. Therefore, at this instant, the ECG, no current flows from the ventricle to the ECG, and therefore everything is at the baseline. We have discussed this concept in detail in chapter number 11. Okay. Next, the repolarization takes place. All the heart finally repolarizes, except the area which is permanently depolarized, which is the infarcted area. Therefore, the repolarization causes return of the current of injury in each lead. So that comes back again. So you see, again, the current of injury is not something normal. It indicates the point of damage in the cardiac vessel. Now, the J point का concept क्या है? J point is the zero reference potential for analyzing the current of injury. One might think that the ECG machines could determine when no current is flowing around the heart. However, many stray currents exist in the body, such as current resulting from skin potentials and from differences in ionic concentration in the different fluids of the body. So current थोड़ा बहुत pick होता है ECG पर. Therefore, when two electrodes are connected between the arms and between an arm and a leg, these stray currents make it impossible to predetermine the exact zero reference. For this reason, the following procedure must be used to determine the zero potential level. First, one notes that the exact point at which the wave of depolarization just completes its passage through the heart, which actually occurs at the end of the QRS complex. At exactly this point, all parts of the ventricle have become depolarized. So QRS complex के end पर all ventricle is already depolarized, including both the damaged part as well as the normal part. Damaged part तो हर वक्त ही depolarized है because it is all the time negative. Even the current of injury disappears at this point. और ये क्यों disappear हो जाता है? क्योंकि पूरे का पूरा जो heart है वो negative है. There is no current of injury at this point. Therefore, the potential of ECG at this instant is at zero voltage. This is called the J point in the ECG. अब ये figure पे हम देख लेते हैं ताकि ये बात हमको समझ में आ जाए. So if you look at this particular diagram, this is the zero reference. So you see, this is the point when the QRS complex is completed and the whole heart is actually in a depolarized state. So सारे का सारा heart negative है. जब सारे का सारा heart negative होगा तो there will be no current flow. So at this point, when there is no current flow, this is called the J point, which is the zero reference. Then, for analysis of the electrical excess of the injury potential caused by the current of injury, a horizontal line is drawn in the ECG for each lead at the level of the J point. This horizontal line is then the zero potential level for the current of injury, obviously, in ECG, from which all the potential caused by the currents of injury must be measured. So basically बात ये हो रही है कि हम जब कभी whenever we are studying an ECG, so normal अगर QRS complex होता है तो हम एक baseline draw करते हैं, लेकिन if you observe any current of injury, then you draw the horizontal line at the J point ताकि यहाँ से current of जो injury है उसको study किया जाए. Okay, so that's the bottom line of this. The use of J point in plotting the axis of injury potential. ये बात हमने already actually कर ली है, so there is nothing much left in there, but let's go through this. Figure 1218 shows ECG lead 1 and lead 3 from an injured heart. Both records show injury potentials. In other words, the J point of each of these two ECG is not on the same line as the TP segment. In the figure, a horizontal line has been drawn with the J point to present the zero voltage, which we have already drawn here. This is the zero voltage, and that's the J point. Okay. At the bottom of the 1218, the representative injury potential in lead 1 and 3 are plotted on the coordinates of these leads, and the resultant vector of the injury potential for the whole ventricular muscle mass is determined by the same analysis as we described. So if you look at this diagram, let us try to figure this out. Okay, this is what we have drawn, lead 1, this is lead 3, and what we are trying to do is lead 1 में what we are looking at, if this is positive, so we are drawing in lead 1 as a positive arrow, and for lead 3 this current of injury is in the negative, below the zero line. So if it is above the zero line, this is positive, below the zero line this is negative. So negative है तो head towards the negative, इसका perpendicular, and here we have got the resultant. So this is how you determine the axis of the current of injury. It seems like the current of injury is because of damage towards the left side of the body, because this is the right side of the patient, this is the left side of the patient. So बात basically ये हो रही है कि अगर
आप नोटिस करते हैं ईसीजी में इफ देयर इज एनी करंट ऑफ इंजरी, तो करंट ऑफ इंजरी की पहले आप जीरो लाइन डिटरमाइन करते हैं, दिस इज द जीरो लाइन। फिर इस जीरो लाइन से आप स्टडी करते हैं कि करंट ऑफ इंजरी अपवर्ड है जीरो लाइन से या डाउनवर्ड है जीरो लाइन से। अगेन देख हम वही रहे हैं, लीड 1 देख रहे हैं, लीड 3 देख रहे हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया था एक्सिस डेविएशन के लिए, तो करंट का भी एक्सिस डेविएशन आप पता कर रहे हैं। तो लीड 1 का चूंकि पॉजिटिव है अबव द जीरो लाइन, तो ये पॉजिटिव ड्रॉ किया है। लीड 3 का इट इज नेगेटिव, तो नेगेटिव ड्रॉ किया है, हेड टुवर्ड्स द नेगेटिव। फिर इसका परपेंडिकुलर और ये आपने बना लिया एक वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है इट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द एरिया जहां से करंट ऑफ इंजरी इनिशिएट हो रहा है, और ये है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। सो ऑल्दो इट लुक्स लाइक दिस इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, लेकिन यहां पे डिस्कशन में एक चीज मुझे और एंटर करनी पड़ेगी। सो वेयर इज द बेस ऑफ द एरो एंड वेयर इज द हेड ऑफ द एरो। देखें हेड ऑफ द एरो इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, लेकिन बेस किधर है? बेस इज कमिंग फ्रॉम द राइट साइड। तो बेसिकली इंजरी होगी राइट साइड पे एंड देन द करंट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। सो जब कभी करंट ऑफ इंजरी को एनालाइज करते हैं, सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ द एरो क्या है, बिकॉज जो बेस ऑफ द एरो बनेगा दैट बेस विल बी एक्चुअली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द इंजर्ड एरिया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट ऑफ इंजरी के लिए। अब सो फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट, उससे पहले कि हम कुछ एग्जांपल्स देखें, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द कॉजेज ऑफ इस्कीमिया, इंजरी पोटेंशियल। सो इस्कीमिया की वजह से देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन द हार्ट। सो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज इस्कीमिया, myocardial ischemia, there is lack of oxygen supply, there is excess accumulation of carbon dioxide in the heart tissue, as well as there is lack of sufficient food nutrients. So इन तमाम की वजह से there can be damage. तो ये कोई अनहोनी या कोई न्यू चीज़ नहीं है आपके लिए। अब there are certain scenarios जो आपको समझने हैं। So for example, if there is anterior wall infarction में, so what we are looking at is this particular example. This is look at lead 1, look at lead 3. So in lead 1, this is where we are talking about. अगर हम एक again हमने J point determine करना है और एक zero line reference draw करनी है, ठीक है? So if we have to draw a J point which would be somewhere here, and I draw a reference line here, so you see the current of injury is in the negative direction. So lead 1 में it is drawn this way, head towards the negative direction. Lead 3 में अगर हम देखें, so J point से current of injury is in the positive direction. So positive direction में है, so lead 3 में it is drawn in the positive direction. ये करने के बाद now we have drawn perpendicular to both these vectors, और perpendicular जब draw करते हैं जहां पे ये intersect करेंगे, so this is now our resultant axis deviation vector for the current of injury. अब again it looks like this is right axis deviation, लेकिन point क्या है? point ये है कि although it is right axis deviation, लेकिन base किधर है? Base is towards the center, towards the anterior side. So this is the base of the ultimate vector that we have drawn. और ये यानी कि जहां base होगी एरो की, that is the point which is the injured point, क्योंकि ये नेगेटिव साइड को इंडिकेट करेगा। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जरा इसको देख भी लेते हैं। यहाँ पे फिगर 12-19 shows the ECG in 3 standard bipolar limb leads and 1 in the chest lead. V2 भी दिखाई है और इस पर भी मैं कमेंट करता हूँ कि अगर यहाँ J point ड्रॉ करें, so we have a big negative component here. Okay, so let's discuss this as well. Lead chest lead 2 दिखाई हुई है और 3 bipolar limb leads दिखाई हैं। The most important diagnostic feature of this ECG is the intense injury potential in the lead chest lead 2. If one draws a zero horizontal potential line through the J point of this ECG, a strong negative injury potential during the TP interval is found, which means that the chest electrode over the front of the heart is in the area of strongly negative potential. This is what it means, because यहाँ पे ये negative potential आपको दिख रहा है। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोड है वो चेस्ट पर नेगेटिव साइड पे पड़ा हुआ है, सो नेगेटिव साइड कौन सा साइड है? इंजर्ड साइड, यानी एंटीरियर वॉल में इंजरी है। दैट्स द पॉइंट। सो देयर इज एन एंटीरियर वॉल इंफ्रॉक्शन बिकॉज चेस्ट लीड 2 में यू आर सीइंग अ नेगेटिव डिफ्लेक्शन. When analyzing this injury potential in lead 1 and lead 3, one finds a negative potential in lead 1 and a positive potential in lead 3. This is something that we have already seen. A negative potential in lead 1 and a positive potential in lead 3. And we just drew this vector analysis हमने की. So vector analysis के बाद हमने ये देखा कि the negative end pointing towards the left ventricle and the positive end pointing towards the right ventricle. यही बना था हमारा फाइनल वेक्टर. इफ यू सी दिस वेक्टर अगेन, दिस वन विच इज ये इसका बेस जो है, दिस इज द नेगेटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये जो इसका हेड है इट इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल. ऐसे ही है ना. और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि
the negative end pointing towards the left ventricle and the positive end pointing towards the right ventricle. Therefore, यानी अगर ये normal हम axis deviation की बात कर रहे होते तो इसको हम कहते हैं right axis deviation, लेकिन ये axis deviation नहीं है, ये current of injury है. तो इसमें हमको ये देखना होता है कि जो base है वो किस तरफ है और हेड किस तरफ है. दैट और बेस चूंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ है तो यहाँ प्रोबेबली इंजरी जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में है. देयरफॉर इन दिस ईसीजी द करंट ऑफ इंजरी इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर वॉल. लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों? क्योंकि इस एरो को देख के मुझे पता लग रहा है कि बेस लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ है. एंटीरियर वॉल क्यों? क्योंकि इस चेस्ट लीड को देख के मुझे पता चल रहा है कि इट्स टुवर्ड्स द एंटीरियर साइड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. देयरफॉर आई कैन नाउ विद कॉन्फिडेंस tell that this is probably problem with the anterior descending branch of the left coronary artery, because this is what supplies the left anterior wall. So again this looks a little complicated but that is pretty easy. आपको ये पता होना चाहिए किस लीड में क्या दिख रहा है और उसको रिवर्स इंजीनियर करके बैकग्राउंड पर उसके फैक्ट्स हैं क्या. So if you understand the physiology you should be able to tell the pathology. Okay, अब इसको बेस बनाकर what I would like you to do is study the posterior wall infarct and all the other descriptions written there and these diagrams, and try to solve them yourself. If you are unable, then I will take you through this, but I've given you the concept. Yeah, if you want me, I can go through one more ECG and then the rest you can read yourself. So posterior wall infarction, for example, let us see figure 1220. Where's figure 1220? So we will be talking about this particular figure, I think 1220. Yeah, okay. So figure 1220 shows 3 standard bipolar limb leads and 1 chest lead, which is again V2, from a patient with a posterior wall infarction. The major diagnostic feature in the ECG is also the chest lead. If a zero potential is drawn through the J point of this lead, it is readily apparent that during the TP interval, the potential of the current of injury is positive. So let's have a look if it is positive or not. That's it. Oh yeah, it is positive. So if you look at this, that is all the current of injury, and this is positive above the zero line. Now obviously it's going to take some time for you to master where is the J point, और ये हम मेडिसिन में डिस्कस करेंगे भी, बट यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. So chest lead में there is a positive deflection. This means that positive end of the vector is in the direction of the anterior chest wall, और नेगेटिव एंड कहीं डीप है. डीप है मतलब अंदर पोस्टीरियर एंड ऑफ द हार्ट से निकल के आ रहा है. सो जो चेस्ट लीड पड़ी हुई है उसकी तरफ जो एरो है वो एंटीरियर सरफेस इज हेल्दी बिकॉज ये पॉजिटिव है. नेगेटिव डीप अंदर कहीं से आ रहा है, सो दैट्स द पॉजिटिव. सो इंजरी का साइड जो है मुझे इतना पता लग गया चेस्ट लीड को देख के कि दैट इज गोइंग टू बी द पोस्टीरियर वॉल. दैट इज गोइंग टू बी द पोस्टीरियर वॉल जस्ट बाय लुकिंग एट द anterior chest lead. ठीक है. Now if we analyze chest lead 2 and chest lead 3, it is readily apparent that the injury potential is negative in both the leads. Let's have a look. So lead 2 and lead 3. Lead 1 में तो कोई current of injury शायद दिख ही नहीं रहा, but it's pretty apparent in lead 2 and lead 3. So in both of them it looks negative. J point से नीचे, J point से नीचे. So if you see this, this is all negative. So lead 2 and lead 3 दोनों में arrows हमने बना दिए negative direction में. Head towards the negative direction of 2, head towards the negative direction of 3. इसका perpendicular, it goes like this. When it goes like this, that tells you something. और वो देखते हैं कि क्या है. By vectorial analysis as shown in the figure, one finds that the resultant vector is in the direction of about minus 95 degrees, with the negative end pointing downward and the positive end pointing upward. ये तो समझ में आ रही है ना बात. एरो का बेस है तो ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड है. सो नेगेटिव एंड इज डाउनवर्ड एंड पॉजिटिव एंड इज अपवर्ड. ये बात भी समझ में आ गई. Thus, because the infarct, as indicated by the chest lead, is in the posterior wall of the heart, and as indicated by the injury potential in lead 2 and 3, it is in a apical portion of the heart. Apical portion, not the base. Not the base, okay? And one would suspect that this infarct is near the apex of the posterior wall of the left ventricle. So these are actually kind of tricks by which you try to understand how to interpret different ECGs. करंट ऑफ इंजरी है तो फिर आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज द हेड ऑफ द पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन किधर है. Okay, what else? Infarcts of the other parts of the, using the same procedure demonstrated in the preceding discussion of the anterior and the posterior wall infarction, it is often possible to determine the locus of an infarcted area. इन्फाक्टेड एरिया का लोकस वो होगा जहां पे एरो का बेस पॉइंट करेगा, बिकॉज दैट विल बी द नेगेटिव पार्ट. जहां हेड पॉइंट करेगा वो पॉजिटिव पार्ट है, ये हेल्दी पार्ट है, बिकॉज दिस इज द हेल्दी पार्ट, दिस इज द नेगेटिव पार्ट इज द डीपोलराइज्ड पार्ट. ओके. ECG progression during and after acute coronary thrombosis.
Right, now figure 1221 shows a V3 chest lead from a patient with an acute anterior wall infarction, demonstrating ECG changes from the day of attack, 1 week later, 3 weeks later, and finally 1 year later. So that's the normal, that is during the attack, and this is 1 day, weeks, and years. Okay? We'll see what are the differences. From this ECG, one can see that the injury potential is strong immediately after the acute attack. So this is normal, but this is the attack. You see the injury, there will be a J point, and you see the QRS complex, there is ST segment elevation, and all sort of injuries there. There is, displaced positively from the ST segment. TP segment pura ka pura hil gaya. Now, however, after about 1 week, the injury potential has diminished considerably, and after 3 weeks, it's almost gone. After that, the ECG does not change greatly until the next year. This is usual recovery pattern of an acute myocardial infarction of moderate degree, showing the new collateral coronary blood flow. So, initial time में very heavy damage, and then the damage is coming back to normal, basically. Okay. Now, Q waves on ECG represent old myocard infarction. That is an important point. Figure 1222, which is this figure, and I'll show you in a minute what does that mean, shows lead 1, 3 after anterior and posterior infarctions about 1 year after the acute heart attack. Usually a Q wave has developed at the beginning of the QRS complex in lead 1 in the anterior infarction because of the loss of muscle in the anterior wall of the left ventricle. But in the posterior infarction, a Q wave has developed at the beginning of the QRS complex in lead 3. So ये आपको याद रखना है कि anterior infarct में lead 1 में a Q wave is developed और posterior infarct में it is lead 3. Okay, these configurations are certainly not found in all cases of old myocardial infarction. Local loss of the, so it is pretty variable, but it depends. So if you look here, तो ये sharp Q wave आपने देखनी है अगर ये आपको lead 1 में prominent दिख रही है. Think about the anterior infarct, और ये देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रही lead 3 में. लेकिन अगर posterior infarct की बात होगी तो lead 1 में नहीं दिखेगी, देखें sharp, but a sharp Q wave you will see at the beginning of the QRS complex in lead 3. So that is how you identify कि infarct anterior था, posterior था, that sort of thing. Current of injury in angina pectoris. The term angina basically means painful condition. It's pain from the heart felt by the pectoral region of the chest. Angina pectoris इसलिए से कहते हैं. This pain usually also radiates to the left neck area, और ये हम सब पढ़ेंगे इसकी pathology medicine में. And injury potential sometimes appear on ECG during the attack of severe angina pectoris because of the coronary insufficiency becomes great enough to prevent adequate repolarization. So current of injury बाज़ औक़ात इसमें दिखता है, but this is not 100% diagnostic. उसका reason ये है क्योंकि ये दिखता भी during the angina attack है, और usually जिस वक्त पेन हो रहा होता है अगर पेशेंट का ECG नहीं हुआ, then you can actually not comment upon it. So axis deviation and then the current of injury की direction. Okay, तो इस तरह आप बताते हैं कि कहाँ पे area of injury है. So remember, arrow का जो head है that is positive, that is normal side. Arrow का जो base है that is negative, that is the injured side. Okay, J point की identification, zero reference line, all very very important. Now abnormalities in the T wave, that is the last bit of this chapter, and then we are done. Earlier in the chapter, we noted that T wave is normally positive in all the leads, 1 में, 2 में, and 3 में, and that is caused by the repolarization of the apex and outer surface. ये हमने सब ऊपर discuss किया हुआ है. That is, the T wave becomes abnormal when the normal sequence of repolarization does not occur. Several factors, including myocardial ischemia, can change this sequence of repolarization. So T wave से related मुझे सिर्फ ये दो diagrams आपसे discuss करनी है कि usually they are positive in all the limb leads. If it is inverted T wave, that is indicative of ischemia. And if it's a biphasic T wave, यानी इसका एक portion negative है और एक portion positive है, that's called a biphasic T wave. That is indicative of digitalis toxicity. So in exam, most of the time they are very much interested in the QRS complex or current of injury. These are super important topics, but T wave, only two things you have to remember and you'll be good at your exam. If T wave is inverted, mild ischemia. If T wave is biphasic, digitalis toxicity. Now the rest of the discussion is extremely confusing, not important, not high yield for your exams, okay, but remember these two diagrams, they are important. So that sums up our discussion on chapter number 12, which is about vector analysis. तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले चैप्टर में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.